Jai Guru. We welcome you all to this virtual webinar on legal discussion on transfer of property, will and litigation thereto. We feel proud to organize the webinar on a very unique topic, which is most important and useful for each and every member. Due to this pandemic, we have seen the large number of deaths occurring in so many families. This creates a number of issues relating to succession and other family issues mainly involving property of the deceased person. Keeping this in mind, the Sindhi Professional Society organized this webinar. With this introductory speech, I hand over to our president, Mr. Mahesh Aswani. Please, sir. Namaste, Sabnike, and welcome to this webinar series of SPS. सिंधी प्रोफेशनल सोसाइटी में असां ये वेबिनार सीरीज चालू कई जॾहिं खां लॉकडाउन थियो आहे पर एतिरो वधीक न करे सघिया आहियूं ड्यू टू हिन कोरोना जे करे। वरी असांजो ॿियों आहे, पहिरियों जेको हुयो उहो हार्ट डिज़ीज़ ते हुयो ऐं उहो काफ़ी सक्सेसफुल वियो हुयो। असांजो मेन मक़सदु इहो ई आहे त असांजा जेके मेंबर्स आहिनि ऐं उन्हनि सां जुड़ियल जेके बि असांजी सिंधी कम्युनिटी आहे उन्हनि खे हर कंहिं ॻाल्हि जी अवेयरनेस अचे। केतिरियूं ॻाल्हियूं एतिरियूं हूंदियूं आहिनि जेके हिडन हूंदियूं आहिनि, ख़बर न हूंदी आहे। असांजो अॼु जो टॉपिक असां खयों आहे कि प्रॉपर्टी डीलिंग ऐं उनजे लॻते जेके बि शयूं आहिनि ऐं उनजी जेको भागडोर संभाली आहे श्री नरेंद्र भाई टेलरामानी, दीपक भाई सेजवानी ऐं धीरज भाई सेजवानी। मां जीतू भाई टिलाणी खे अर्ज कंदुमि त अॻियां प्रोसीड कनि। म्यूट है। Thank you, Mahesh, sir. I warm welcome to our webinar committee chairman, Mr. Ashish Tekwani. Now I hand over to Mr. Ashish Tekwani. थैंक यू जीतू भाई। मुख्य अॼु वेबिनार जो सबसे इज़ी कम ॾिनल आहे। एॾनि व्यक्तियुनि खे इंट्रोडक्शन करणो आहे जंहिंखे अहमदाबाद में सजाई माण्हू सुञाणींदा आहिनि ऐं हुननि जो नालो ई काफ़ी आहे। बट फॉर्मेलिटी जे लाइ मां फॉर्मल इंट्रोडक्शन ॾींदुमि। एडवोकेट दीपक सेजवानी and notary. He has done his LLB in the year 1983 and established the firm Sejwani and Company in the same year. He has an experience of more than 35 years and has given consultancy and advocacy services in many parts of the countries and to even NRIs. He has a notary public license issued by Government of India. The firm Sejwani and Company has more than 7 advocates who are actively providing service to the clients. They have well-equipped office with latest technology to provide latest service to their clients. Their core area of practice is RERA advice and drafting, revenue procedures, conveyancing and drafting, investigation titles of the land properties, MOUs, arrangement and settlement, mortgage and charge related drafting. Another esteemed panelist of our today's webinar is Advocate Narendra Teleramani ji. He is practicing advocate since 1991 and practicing within Ahmedabad Civil Court, Criminal Court, DRT Court. He has experience of various criminal and civil matters and bank-related matters also. He is life member of many associations like Criminal Bar Association, Small Cause Bar Association, DRT Association, life member of Sindhi Advocate Association. He is empaneled in almost all the banks and all the leading institutions of Ahmedabad as a panel advocate. The moderator for today's debate is my friend Dheeraj Sejwani. He's done his LLB in the year 2012 from Nirma University. Then he has got training from various law firms at Mumbai, Delhi, Ahmedabad.
He has interned with various reputed lawyers, including Mr. Ram Jethmalani, Advocate of Supreme Court of India. He is also passed his solicitor's examination conducted by Bombay Incorporated Law Society, Mumbai in the year 2017, and thereafter become solicitor. He is also working in Sejwani and Company and handling the entire drafting, litigation, and document division of the firm. I would like now moderator, advocate, and solicitor Dheeraj Sejwani to begin today's program. Thank you, Ashish, for the lovely introduction. And It was really a nice introduction. thank you, Ashish. And good morning, everyone. Adija Sabasa, esteemed panelists, Asada Gadan, chairmen, and SPS main members, Sabasa Gadan. Asa अॻियां प्रोसीड कंदासीं जेको अॼु जो प्रोजेक्ट अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे हुन में त दीपक सर फर्स्ट ऑफ ऑल जीअं असांखे अॼु जो टॉपिक आहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी त ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में छा छा पॉइंट्स हूंदा आहिनि छा तरह जा ट्रांसफर थींदा आहिनि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हिकु त सैलरी नमूने थींदी आहे ॿियो त गिफ्ट रस्ते ट्रांसफर थींदी आहे भई हिकु में जंहिंजे नाले आहे उहो ब्रदर सिस्टर या कंहिंजे बि थर्ड पार्टी नाले ट्रांसफर करे सघंदो आहे हुन गिफ्ट डीड रजिस्टर कराइबो आहे ॿियो एक्सचेंज डीड थींदो आहे भई हिक जे नाले प्रॉपर्टी हुजे ऐं ॿिए जे नाले हिक ॿिए खे प्रॉपर्टी ॾींदा हुजनि तॾहिं बि एक्सचेंज डीड थींदो आहे ऐं ॿियो हुन खां पोइ कोई जंहिंजे नाले प्रॉपर्टी आहे कोई एक्सपायर थिए त हुनजे वारसदार नाले प्रॉपर्टी ट्रांसफर थींदी आहे हिन ते तरीक़े सां एब्सोल्यूट ट्रांसफर थींदो आहे ऐं हिकिड़ो वारसाई सां प्रॉपर्टी कोई गुज़ारे वञे त उहो मिलंदी आहे बरोबर हाणे प्रॉपर्टी जॾहिं ट्रांसफर थींदी आहे त उन में छा पेपर्स बायर जॾहिं अगरि डील करे थो बायर एंटर करे थो त उन लाइ छा पेपर्स चेक करणा रहंदा आहिनि दीपक सर उनजे लाइ पहिरियों त झूना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभु चेक करणा पवंदा ऐं पूरी लिंक चेक करणी पए पहिरियों कंहिंजे नाले उन खां पोइ कंहिंजे नाले टोटली पेपर्स ओरिजिनल डीड चेक करणा पवनि प्लस सेल डीड चैनल लिंक उन खां पोइ शेयर सर्टिफिकेट पोजेशन लेटर अलॉटमेंट लेटर 7/12 उतारो सिटी सर्वे नकल प्लान रजा चिट्ठी व्यू परमिशन टैक्स बिल लाइट बिल ऐं मेंटेनेंस क्लियर आहे कि न उहो सभु पेपर्स चेक करणा पेपर सभु चेक करणा पवंदा आहिनि हा हाणे हिन खां पोइ अगरि पाण परचेज़र प्रॉपर्टी बाय करनि था त उन महिल उन्हनि खे छा प्रोसेस करणी खपे ऐं इम्पोर्टेंटली कहिड़ा डॉक्यूमेंट इनिशियली करणा पवनि त उन सां कॉन्क्रीट ऐं ईज़ी वे हुननि जो सेल डीड प्रोसेस कंप्लीट थींदो आहे कोई बि प्रॉपर्टी पाण चेक करे कयूं त हुन में पहिरियों एग्रीमेंट फॉर सेल उन खां पोइ पब्लिक नोटिस ॾियणी पवंदी आहे वकील मार्फत या सॉलिसिटर मार्फत ॿियो त प्रॉपर्टी जा इन पेपर सर्च करणा पवंदा आहिनि उन खां पोइ टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जी कार्यवाही करणी पवंदी आहे हिन में हा हिकु शइ मां ऐड कंदुमि हा हा असां जेॾी महिल बि कोई बि प्रॉपर्टी जी परचेस या सेल थींदी आहे त उन ॻाल्हि में असां जेका सर्च कराईंदा आहियूं उहो ॾाढो इम्पोर्टेंस रखंदी आहे सर्च में जेको हूंदो आहे असां 30 सालनि जो सॼो रिकॉर्ड तलाटी वटि मामलतदार वटि ऐं रजिस्ट्रार जी ऑफिस वटि असां उहो चेक कराईंदा आहियूं उन 30 सालनि जे रिकॉर्ड में असांखे सॼी जेका बि हिस्ट्री आहे उन प्रॉपर्टीअ जी मिलंदी आहे उन खां पोइ ई टाइटल इशू थींदो पेपर्स क्लियर करण खां पोइ प्रोसेस करण खां पोइ हाणे हुन जी प्रोसेस थींदी आहे टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट वठिणो पवंदो आहे सेल डीड रजिस्टर ड्राफ्टिंग रजिस्टर हुन खां पोइ प्रोसेस कंप्लीट थींदी आहे हाणे जॾहिं पार्टीस जा टर्म्स कंडीशन फाइनल करणा आहिनि जीअं दीपक सर चयो नरेंद्र सर मां तव्हांखां क्वेश्चन थो पुछां त उन केस में एग्रीमेंट फॉर सेल इनिशियली पाण खे जीअं सर चयो ड्राफ्ट करणो त उन महिल एग्रीमेंट फॉर सेल इन जनरल लेमेन लैंग्वेज अगरि चऊं त 12 खत ड्राफ्ट कंदे टाइम छा पॉइंट्स छा मुद्दा उन्हनि खे कंसीडर पहिरियों करणा पवंदा आहिनि बायर ऐं सेलर जो कोई डिस्प्यूट न थिए या उन शइ खे अवॉइड करण लाइ छा करे था सघूं
धीरज भाई, जॾहिं बाना ख़त जो स्टेज ईंदो आहे ॿिनि पार्टियुनि जे नेगोशिएशंस खां पोइ, त बाना ख़त राइटिंग में हुजणु ज़रूरी आहे। एग्रीमेंट टू सेल अॼुकल्ह रेरा जे हिसाब सां त बिल्डर खां वठूं था त रजिस्ट्रेशन बि कंपलसरी आहे। तंहिंजे करे बाना ख़त या एग्रीमेंट टू सेल ॿिनि पार्टियुनि जे विच में थिए थो, उहो नोटराइज़ या रजिस्टर कराइणु ज़रूरी आहे। त उन किसे में असांखे जेको बि टर्म्स ऐं कंडीशन पार्टियूं नकी कयो आहिनि, उन टर्म्स ऐं कंडीशन खे राइटिंग में ॾियणु, राइटिंग में लिखणु ज़रूरी आहे। उन में कंडीशंस जेके हूंदियूं आहिनि, सभिनीनि खां पहिरियों जेको बि सेल कंसिडरेशन प्रॉपर्टी जो थियो आहे, उन सेल कंसिडरेशन में केतिरे टाइम में कंहिं नमूने पेमेंट कयो वेंदो उहो डिसाइड थियल हूंदो आहे। उन खां पोइ उन जो ड्यूरेशन जेको आहे, सेल डीड केतिरे टाइम में रजिस्टर्ड कयो वेंदो या पूरो कयो वेंदो सेल जो ट्रांजेक्शन, उहो डिसाइड कयो वेंदो आहे। त उहे सभु जेके टर्म्स ऐं कंडीशन आहिनि, उहे राइटिंग में हुजणु ज़रूरी आहिनि। धीरज भाई, द अमाउंट कंसिडरेशन अमाउंट बाना ख़त जी अर्नेस्ट मनी, पार्टियुनि जा परफॉर्मेंस छा उहो परफॉर्म कंदा, हुन खां पोइ लोन पार्टी जी कुझु हुजे त उहो लोन क्लियर कराईंदा आहिनि। पर इन केस में वी असां डिस्कस कयो कि पार्टी जॾहिं नेगोशिएट थी करे एंट्री डिसाइड था कयूं, पर हुन बाना ख़त में ब्रीच मानी एग्जिट या टर्मिनेशन चऊं त उन केस में छा ब्रीच जा पॉसिबिलिटीज हूंदा आहिनि ॿिन्हिनि पार्टियुनि खे, फ्रॉम बायर साइड ऐं सेलर साइड? नरेंद्र सर, छा पॉइंट असांखे ध्यान ते रखणा हूंदा आहिनि? पहिरियों मां सेलर साइड जो ॿुधाईंदुमि। सेलर साइड खे सपोज परचेसर ब्रीच करे थो कोई बि कंडीशन, त सेलर वटि हिकु अर्नेस्ट मनी बाना ख़त जी मनी ऑलरेडी हूंदी आहे। उन मनी में अॼुकल्ह छो त ट्रांजेक्शन वॾा थी विया आहिनि, पैसा वॾा हूंदा आहिनि, त घणेई दफ़ा उन पैसनि जो कुझु परसेंटेज डिसाइड करे उनखे अर्नेस्ट मनी मां उहो माइनस करे, उहो फॉरफिट करे बाक़ी जी पैसा वापसि ॾिना वेंदा आहिनि। सपोज फॉर एग्जाम्पल असांखे कोई ट्रांजेक्शन थियो ऐं उन में बाना ख़त में 10 लख रुपया कंहिं परचेसर खे ॾिना आहिनि, त उन मां 15% 20% जेको बि फिक्स डिसाइड थियल हुजे, उहा टर्म्स उन में उन हिसाब सां ओतिरी अमाउंट उनजी फॉरफिट करे बाक़ी जी रक़म उनखे परचेसर खे वापसि ॾेई करे एग्रीमेंट टू सेल जेको थियो आहे उहो कैंसल कयो वेंदो आहे। हाणे परचेसर जे बारे में अचूं त परचेसर जे बारे में असां सोचूं त उनखे बि उहे राइट्स ॾिना वेंदा आहिनि एग्रीमेंट टू सेल में। सपोज सेलर उनखे मना थो करेसि कंहिं बि ॻाल्हि जे लाइ, भई तव्हांखे मां इहे प्रॉपर्टी नथो ॾियां, मूंखे तव्हांखे सेल डीड न करे ॾियणो आहे, त उन केस में उनखे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो ऑप्शन ॾिनो वेंदो आहे, जंहिंमें उहो कोर्ट में वञी करे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो सूट फाइल करे उन बेस ते उहा प्रॉपर्टी उहो खणी सघंदो आहे। सेकंड ऑप्शन में ईअं हूंदो आहे, भई सपोज हुन जेका अर्नेस्ट मनी ॾिनी आहे उन ते कुझु इंटरेस्ट ऐड करे या पेनल्टी ऐड करे उन खां वापसि वठी करे एग्रीमेंट टू सेल कैंसल थी सघंदो आहे। परचेसर वटि ॿ राइट हूंदा आहिनि। हिकु राइट जेको हूंदो आहे उहो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो हूंदो आहे, जंहिंमें उहा प्रॉपर्टी वापसि वठी सघंदो आहे उन खां सेलर खां कोर्ट जे थ्रू। सेकंड ऑप्शन जेको हूंदो आहे, उनखे उहो जेका अमाउंट उनखे उन एतिरो टाइम ॾिनी अथई उन ते इंटरेस्ट वठी करे या पेनल्टी सां गॾु उहा रक़म वापसि वठी सघंदो आहे। त हे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिविल सूट में थींदो, त हुन केस में कोई टाइम लिमिट आहे कि टाइम लिमिट में पाण फाइल करे था सघूं? एंड अल्टरनेटिवली अॼु जे ट्रेंड जे हिसाब सां सिविल कोर्ट में त थोरो प्रोसीजर लंबो आहे, त हुन केस में कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन आहे असांखे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जे दावे सिविल सूट जे अलावा अल्टरनेटिव ॿियो कोई रस्तो पाण सिलेक्ट करे बिल्कुलु सघूं? रस्ता आहिनि हिन में धीरज भाई। पहिरियों रस्तो ईअं आहे, भई सपोज एग्रीमेंट टू सेल में घणी दफ़ा अॼुकल्ह आर्बिट्रेशन क्लोज असां विझणु चालू करे छॾियो आहे। कोई बि डिस्प्यूट अराइज थिए थो त तव्हां आर्बिट्रेशन अपॉइंट करे आर्बिट्रेटर जे थ्रू तव्हां पंहिंजो डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन करे सघो था, जेको हिकदमि शॉर्ट स्वीट ऐं सस्तो रस्तो आहे। ऐं उनखां सवाइ ॿियो रस्तो जेको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो आहे, उन में लिमिटेशन जेका आहे उहा 3 सालनि जी आहे। कोई बि सिविल सूट असांजो जॾहिं बि कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट थींदो आहे उहो नॉर्मली 3 सालनि जी हूंदी आहे, पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ऐं एग्रीमेंट टू सेल जे क्लोज़िस में घणेई दफ़ा ईअं हूंदो आहे, भई कुझु कमु करण खां पोइ तव्हांजो ही एग्रीमेंट टू सेल फाइनल थींदो। भई सपोज हुन सेलर बैंक मां लोन वरिती आहे, उहा लोन जेसि ताईं उहो क्लियर नथो करे तेसि ताईं सेल डीड न थियणो आहे। त सपोज उन में उनखे लंबो टाइम लॻे थो ऐं उन खां पोइ सपोज उहो नथो करे सघे या कंहिं बि रीज़न सां उहो प्रॉपर्टी नथी सेल थिए,
त उहो जेको टाइम लिमिट जेको अॻियां वधंदो उहो उन टाइम खां वधंदो जॾहिं खां उन भाई रिफ्यूज़ कयो हुजे। त इनखे सिंपल भाषा में चऊं कि लॉ विल नॉट हेल्प द पर्सन हु स्लीप ओवर हिज राइट्स। 3 सालनि में अगर वो नथा करनि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट थियण खां पोइ अगर वो नथा करनि 3 सालनि में केस, त लॉ बि उनखे हेल्प न कंदो। बिल्कुलु न कंदो, छो त मूंखे पंहिंजा राइट्स त वठणा आहिनि। बेसिकली लॉ में हिकु चवणी आहे भई बायर्स ऑलवेज बीवेयर, त उन हिसाब सां असांखे माना उहो बिहेवियर रहंदो त उनजा राइट्स मिलंदा, अगर न रहंदो त उनजा राइट्स माना वेनिश थी वेंदा। ओके, त हाणे ये थी ॻाल्हि व्हेन बाइंग प्रॉपर्टी इंटर से, मतलब ॿिनि पार्टियुनि जे विच में अगर ये डील थिए थी तॾहिं ये थींदी आहे। त दीपक सर, अगर असां प्रॉपर्टी बिल्डर खां प्रॉपर्टी वठंदा, अॼु जी तारीख़ में नई स्कीम अर्बनाइजेशन ऐं घणी जॻहियुनि ते प्रॉपर्टीज बिल्डर खां डायरेक्ट बायर वठनि था, त जेको बायर बिल्डर खां वठे थो त उन केस में छा छा शयूं ध्यान ते रखणु खपे बायर खे? कंहिं बि बिल्डर खां प्रॉपर्टी परचेज करणी हुजे त उनजी बिल्डर जी स्कीम या प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड आहे या न उहो चेक करणो, प्लस गवर्नमेंट रेकॉर्ड में आहे कि न उहो चेक करणो, 7/12 जे उतारे में सिटी सर्वे रेकॉर्ड में नालो आहे कि न, प्लस कंस्ट्रक्शन परमिशन वरितल आहे कि न, उनजे NA प्लान पास थियल आहे कि न, उहो सभु ॻाल्हियूं ॾिसी उनखां सवाइ उन प्रोजेक्ट लोन वरितल आहे कि न उहो बि चेक करणो। ये सभु ॻाल्हियूं क्लियर हुजनि उन खां पोइ 10% अमाउंट ॾेई करे एग्रीमेंट रजिस्टर कराइणी पवंदी आहे बिल्डर खां। उन खां पोइ जॾहिं फाइनल पेमेंट ॾियूं तॾहिं सेल डीड रजिस्टर करायूं। त एज पर रेरा हाणे लेटेस्ट रेरा जे हिसाब सां जॾहिं 10% पेमेंट बायर करनि था त एग्रीमेंट फॉर सेल कंपलसरी रजिस्टर करणो पवंदो आहे। हाँ बराबरि। त एग्रीमेंट फॉर सेल 10% पेमेंट रजिस्टर करण खां पोइ कंदा आहिनि, त उन एग्रीमेंट फॉर सेल बायर जे खां गॾु करनि था त उन केस में बायर खे छा छा बेनिफिट्स आहिनि अगर एग्रीमेंट फॉर सेल जॾहिं बिल्डर खां वठंदे महिल करनि था त? बायर खे वठण लाइ हिन एग्रीमेंट करण लाइ वॾो फ़ाइदो आहे। उन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हूंदी त बिल्डर उन प्रॉपर्टी मथां लोन न वठी सघंदो ऐं बिल्डर इहा ई प्रॉपर्टी ॿी पार्टी खे सेल न करे सघंदो। त हिन केस में सिंपल टोन में चऊं त एग्रीमेंट फॉर सेल थींदो आहे त उन केस में बायर लाइ सेफ्टी वधी वेंदी आहे ऐं सेल करण में बिल्डर अगर ॿिए कंहिंखे उहो प्रॉपर्टी सेल नथो करे सघे, प्रॉपर्टी मतिलबु मॉर्गेज लोन नथो वठी सघे ऐं उहो बिल्डर उन प्रॉपर्टी खे बायर खे विकिणंदो आहे जेके टर्म्स कंडीशन फुलफिल थींदा आहिनि त उन हिसाब सां उन्हनि खे ॾींदा आहिनि। बराबरि। त दीपक सर, हिन में घणा जॾहिं बाय कंदा आहिनि प्रॉपर्टी त बिल्डर उन्हनि खे चवंदा आहिनि GST बि तव्हांजे मथां एप्लीकेबल थींदो जॾहिं तव्हां बाय कयो था, या GST न एप्लीकेबल थींदो। हिन में घणी जॻहियुनि ते पब्लिक नोटिस बि ॾींदा आहिनि कि GST नॉट एप्लीकेबल विदाउट GST। त बायर खां प्रॉपर्टी वठंदा आहिनि त हुन में GST जो छा रोल आहे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सां रिलेटेड क्वेश्चन। न, बिल्डर खां प्रॉपर्टी वठंदा आहियूं त असांखे हुन में GST त भरणी पवंदी आहे। जेकॾहिं बिल्डर जी BU परमिशन अची वई हुजे उन खां पोइ GST न भरणी पवंदी। तो बिल्डर खां पोइ जॾहिं GST प्रॉपर्टी परचेस कई आहे BU अची वई आहे त हुन में GST एप्लीकेबल न आहे ऐं इंटर से पार्टी जे विच में जॾहिं थींदो आहे त हुन में GST एप्लीकेबल न आहे। ठीक आहे। रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर है, नरेंद्र सर प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड आहे, बिल्डर खां वठूं था, एग्रीमेंट फॉर सेल कयो आहे। हुन केस में अगर कोई कंप्लेन आहे, बिल्डर फॉलो नथा करनि, बिल्डर उन शइ खे प्रॉपर टर्म्स कंडीशन के फॉलो नथा करनि, कोई कारण से बिल्डर जी प्रॉब्लम आहे, बिल्डर उन टर्म्स कंडीशन के ऑनर रिस्पेक्ट नथो करे, फुलफिल नथो करे, त बायर वटि छा ऑप्शन आहे? धीरज भाई, हिन में असांजो जेको ही एक्ट ठहियो वियो आहे, स्पेशल एक्ट आहे, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जेका ठाही वई आहे हिन में, त उहो बायर्स जे प्रोटेक्शन जे लाइ ठाही वई आहे। तंहिंजे करे बिल्डर्स सां अगर कोई भी डिस्प्यूट्स थियनि था या बिल्डर कोई भी पंहिंजा टर्म्स एंड कंडीशन जेके एग्रीमेंट टू सेल में ॾिना अथई या पंहिंजे ब्रोशर्स में ॾिना अथई भई मां ही फैसिलिटी ॾींदुमि, उहो प्रोवाइड नथो करे,
त उन जी कंप्लेन असां डायरेक्टली रेरा जी जेका ऑफिशियल साइट आहे उन ते वञी करे ऑनलाइन करे सघंदा आहियूं, या त असां ऑफलाइन बि करे सघंदा आहियूं। असां राइटिंग में एप्लीकेशन ॾेई करे उहा कंप्लेन करे सघंदा आहियूं। सपोज़ असांजी कोई बि कंप्लेन उते रेरा अथॉरिटी में वञे थी त उन अथॉरिटी उहो बिल्डर खे घणी दफ़ा पेनल्टी कंदी आहे या घणी दफ़ा डायरेक्शन ॾींदी आहे भई तव्हां ही जेको बि हिन जूं कंप्लेन आहिनि उहो दूर कयो। ओके, त कंप्लेन फाइल थींदी रेरा में, रेरा डिसाइड कंदी, रेरा हैज़ द पावर्स कि वो डिसाइड करे स्पेसिफिक परफॉर्म करे करे डॉक्यूमेंट करे ॾींदी। इन केस डिले तो थे, डिले इन पोजीशन तो थे ऐं असां कंप्लेन फाइल था कयूं त रेरा असांखे बायर खे छा प्रोटेक्शन ॾींदो आहे? हिन में ॿ ऑप्शन हूंदा आहिनि। सपोज डिले जेको सॼो एंटायर प्रोजेक्ट जो थिए थो कंहिं बि रीज़न सां, त इंट्रेस्ट हुनजे मथां उनखे जेको बि आहे उहो लॻंदो आहे बिल्डर जे मथां, या पेनल्टी लॻाई वेंदी आहे जेका असांखे असांजी सेल प्राइस मां घटि करे ॾिनी वेंदी आहे। सेकंड ऑप्शन इहो हूंदो आहे भई सपोज तव्हां उहो कैंसिल था करणु चाहियो कंहिं बि रीज़न सां, भई मूंखे ही प्रॉपर्टी हाणे न खपे छो त डिले थी वियो आहे, त उन केस में तव्हांजी एंटायर रक़म जेका तव्हां अञा ताईं भरी आहे उहा विथ इंट्रेस्ट तव्हांखे वापसि ॾिनी वेंदी। ओके धीरज भाई एक मिनट, कंहिं बि पार्टिसिपेंट्स के कुछ भी क्वेश्चन हुजे त हू આપણે एसपीएस जे ग्रुप में व्हाट्सएप तो करे सके या मूंखे या सूर्या सर के पर्सनल में व्हाट्सएप तो करे सके, छो जो पंहिंजे हिन वेबिनार में चैट बॉक्स कोन आहे। प्लीज कंटिन्यू। धीरज भाई, यहाँ हिते हिकिड़ो क्वेश्चन आयो आहे, छा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी या रेरा में जेको एग्रीमेंट टू सेल आहे जेको असां कंदा आहियूं, पार्टी 10% भरे करे थी, त छा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आहे कि इट्स ऑप्शनल? छो जो घणाई दफ़ा असां ॾिठो आहे कि नोटराइज करे बानाखत कंदा आहिनि। न, उहो पार्टी जे विच में थी वियो आहे। इज इट कंपलसरी अंडर रेरा? कंपलसरी आहे। कंपलसरी, ओके, थैंक यू। सूर्या सर, हिन में मां जस्ट सिंपल क्लैरिफाई कंदुमि कि एज पर रेरा 10% उन्हनि जा स्लैब वाइज फिक्स्ड आहिनि कि हेतिरो पेमेंट थिए थो त एग्रीमेंट फॉर सेल 10% जो जीअं पेमेंट थिए थो त उन ते रजिस्टर थींदो आहे। स्लैब वाइज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट थींदो आहे त उन स्लैब वाइज कंस्ट्रक्शन में भी पेमेंट थींदी आहे, बायर खे उन स्लैब में पेमेंट करनी हूंदी आहे। रेरा जो एक मॉडल ड्राफ्ट आहे जंहिंमें एक्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कंदा आहिनि त ओतिरी पेमेंट करणी आहे, हे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट एतिरो थियो आहे त उन जी एतिरी पेमेंट थींदी आहे, ओनली प्लास्टरिंग बाक़ी आहे त हुन टाइम ते एतिरो घणो आहे, ऐं सेल डीड कंदे टाइम पेमेंट केतिरी करणी आहे उन सभु स्लैब आहिनि, त उन मॉडल ड्राफ्ट जे हिसाब सां ई उन्हनि खे करिणो आहे। ऐं बेसिक में बेसिक रिक्वायरमेंट इहा आहे कि जॾहिं 10% पेमेंट कई आहे त इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड एज पर रेरा बिल्डर खे फुलफिल करिणो आहे, उहो 10% पेमेंट वठी करे एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर करिणो आहे, सो दैट के टर्म्स एंड कंडीशन का बिल्डर कोई भी चेंजिस न करे ऐं हुनजे बायर खे फुल प्रोटेक्शन मिले, त उहो रेरा में 10% पेमेंट जी रिक्वायरमेंट आहे। ॿियो हिकिड़ो सवाल ईअं आयो आहे कि जेको एप्लीकेशन कंहिंखे कंप्लेन करणी आहे रेरा में, त उन में छा कोई टाइम लिमिट आहे कि उन में टाइम लिमिट कान्हे? उन में टाइम लिमिट बेसिकली कान्हे, पर जॾहिं तव्हांजी कंप्लेन अचे थी नेचर ऑफ कंप्लेन ते डिपेंड थो करे। जीअं भई असां चयोसीं एग्रीमेंट टू सेल थियो या फाइनल रजिस्टर्ड सेल डीड थी वियो, उन खां पोइ कोई कंप्लेन अचे थी विदिन 5 years टाइम, त उहो जेके क्लोज़िस आहिनि पंहिंजा गारंटी या वारंटी जा, उन मुताबिक़ तव्हांखे कंप्लेन उते विदिन पीरियड करणी आहे, छो त 5 साल जी वारंटी आहे, उनजे अंदर ई तव्हांखे उहे कंप्लेन्स करणी। ऐं अथॉरिटी जे मथां कुझु टाइम लिमिट आहे कि एतिरे टाइम में डिस्पोज ऑफ करिणो आहे रेरा में? न, कोई भी लिटिगेशन में कंहिं भी एप्लीकेशंस में ईअं फिक्स कान्हे। नॉर्मली इहो विदिन 1 year टाइम जो फिक्स कयो वियो आहे एक्ट जे हिसाब सां, भई 1 year टाइम में तव्हांखे कोई भी कंप्लेंट्स अचनि त तव्हांजो उनखे सॉल्व करिणो आहे, पर वी नो प्रैक्टिकली वो घणी दफ़ा पॉसिबल न थींदो आहे। हाँ, धीरज भाई प्लीज कंटिन्यू। धीरज, थैंक यू। जीअं कि हाणे असां रेरा जे मथां हाणे ऑनलाइन कंप्लेंट्स ॾिठी जंहिंमें बिल्डर सां कीअं डॉक्यूमेंटेशन में अगरि कुझु इशू था थियनि त उहो कराए ॾींदा आहिनि। नरेंद्र सर, मुंहिंजो क्वेश्चन इहो आहे कि अगरि सेल डीड करे छॾी आहे
त उन केस में जाम दफ़ा इन मेनी ईयर केसिस अहिड़ो थींदो आहे कि प्रॉपर्टी जेकी एग्री करेल आहे, जीअं क्वालिटी जेकी ब्रोशर में ॾेखारियल आहे, क्वालिटी जेको एग्रीमेंट फॉर सेल मॉडल ड्राफ्ट में आहे, वो क्वालिटी मेंटेन न कई आहे. देयर इज सम स्ट्रक्चरल डिफेक्ट चवंदा आहिनि, जंहिंमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ थियल आहे. बिल्डर हुन में क्वालिटी में तकलीफ़ कुछ न कुछ मतिलबु लापरवाही रखी आहे, या त हुन कॉन्ट्रैक्टर खां करायो त हुन कॉन्ट्रैक्टर बराबरि न कई आहे. त व्हाट इज रेमेडी अगरि सेल डीड कई आहे, हुन खां पोइ असां रहण वञूं था ऐं प्रॉब्लम थिए थी त? धीरज भाई, जीअं कि थोरो अॻियां डिस्कस थी चुको हुन बारे में, वरी बि मां चवंदुमि, जॾहिं बि कोई क्वालिटी जे बारे में या स्ट्रक्चर डिफेक्ट जे बारे में असांखे कंप्लेन अचनि थियूं, त रेरा ऑथोरिटी समक्ष असां जेॾी महिल कंप्लेन कयूं था त उनजो डिसीजन उहो तुरंत कोशिश करे खणंदा आहिनि. ऐं बिल्डर खे अगरि बिल्डर खे उहो डायरेक्शन ॾींदा आहिनि, भई तव्हां हीअ जेका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आहे उहा तव्हां दूर करे ॾियो. सपोज उहा पॉसिबल न आहे त हुनजो ऑल्टरनेट छा ॾेई सघनि था, उहो डिसीजन ईंदो आहे. ऐं सपोज उन खां पोइ बि उहो पॉसिबल नथो थिए, ऑल्टरनेट बि कोई पॉसिबल नथो थिए, त बिल्डर जे मथां पेनल्टी लॻाई वेंदी आहे, जेका उन्हनि खे माना पे करणी हूंदी आहे. ओके, त दीपक सर, मां हिकु क्वेश्चन हिते पुछंदुमि कि घणा दफ़ा हो थींदो आहे कि बायर जॾहिं प्रॉपर्टी परचेस कंदा आहिनि, सेल डीड थींदी आहे, त बायर जो हिकु हूंदो आहे कि भई बायर हिकु ईअं चवंदा आहिनि कि भई सेल डीड करे करे मां तव्हांखे बाक़ी जी रक़म, बाक़ी जा पैसा, बाक़ी जो चेक मुंहिंजे घर हली थो ॾियां, या मां 2 ॾींहंनि खां पोइ थो ॾियां. या त प्रॉपर्टी में जॾहिं बायर ऐं सेलर जो जॾहिं चेक ॾिनल हूंदो ऐं चेक डिसऑनर थींदो आहे, त उहा अमाउंट उन जी अनपेड रहंदी आहे. त उन केस में बायर खां सेलर वटि बायर जे अगेंस्ट में छा प्रोटेक्शन, छा राइट हूंदो आहे? हिन में राइट हूंदो आहे जेसिताईं हुनखे पेमेंट न मिली आहे, या घणनि ई केसनि में दस्तावेज़ में ईअं थींदो आहे भई मां पेमेंट जेका घर हली ॾींदुमि या पोइ ॾींदुमि ऐं चेक पास न थियो हुजे, त एतिरो चार्ज उन प्रॉपर्टी मथां रहंदो ई आहे जेसिताईं हुनखे फुल सेलर खे पेमेंट न मिली आहे, तेसिताईं हुनजो चार्ज रहंदो ई आहे. उहो अमाउंट जो चार्ज रहंदो आहे. त उन लाइ पाण खे रिलीफ, नरेंद्र सर, रिलीफ छा हूंदी आहे? बायर छा, सेलर छा करे थो सघे? सेलर जीअं कि चार्ज नोटिंग थींदो आहे अॼुकल्ह, जे कोई बि सपोज असां बैंक मां लोन वठंदा आहियूं त उन प्रॉपर्टी जे जीअं चार्ज क्रिएट थींदो आहे, तीअं असां चार्ज नोटिंग कराए सघंदा आहियूं. ऐं कोर्ट मां असां उन जे बारे में सिविल सूट करे उहा रिकवरी कराए सघंदा आहियूं. उहो चार्ज जेसिताईं असांजी रिकवरी नथी थिए, तेसिताईं उन प्रॉपर्टी जे मथां उहो चार्ज रहंदो. उहो चार्ज हुन में रहंदो आहे, सिविल कोर्ट में रेमेडी पाण ठाहे. ओके, दीपक सर, मुंहिंजो क्वेश्चन तव्हांखे आहे कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जाम अननेचुरल डेथ्स थी आहिनि, अनफॉर्चुनेटली अनसर्टनिटी सां जाम डेथ्स थी आहिनि. हुन केस में प्रॉपर्टी जे रिलेटेड थोड़ा पार्टीज इंडिविजुअल्स जे घर में थोड़ा वो कॉम्प्लिकेशंस थिया आहिनि, त उन केस में तव्हांजो छा सजेशन आहे? न, मुंहिंजो त सजेशन उहो आहे जंहिंजे नाले सम्झो प्रॉपर्टी आहे ऐं भविष्य में कंहिंखे ॾियणु चाहे थो, प्रॉपर्टी जंहिंजे नाले आहे उहो ॾियणु चाहे थो, त उनजे लाइ विल करे, ऐं विल 3 नमूननि नोटराइज थींदी आहे. ॿियो ब्लैंक पेपर ते बि रजिस्टर, ब्लैंक पेपर ते बि थींदी आहे. उन में प्रॉपर 2 विटनेस जी सयूं वठी करे पाण उहो करे सघंदा आहियूं. तव्हांजे एडवाइस सां विल करणु खपे, ऐं विल जा जेके फॉर्मेलिटीज़ आहिनि उहा विटनेस 2 रखी करे पाण करे था सघूं, ऐं हिकु पेज ते बि उहा थींदी आहे. त रजिस्टर्ड विल ऐं नॉर्मल पेज ते करणु, हुन में तव्हांजो छा सजेशन आहे कि कहिड़ो बेटर आहे? नॉर्मल पेपर ते करणु सही कि रजिस्टर्ड विल करणु सही? विल रजिस्टर ई करणु खपे, छो कि इहो गवर्नमेंट रिकॉर्ड आहे. उते 2 विटनेस वठींदा आहियूं, विटनेस जे साम्हूं इहा रजिस्टर थींदी आहे ऐं उनजी रिसिप्ट मिलंदी आहे ऐं उते फोटो निकिरंदा आहिनि ऐं लीगली प्रोसीजर थींदो आहे. त रजिस्टर कराइणु ज़रूरी आहे. रजिस्टर करणु वधीक बेटर आहे, जंहिंमें सिग्नेचर ऐं उहो सभु प्रॉपर हूंदा आहिनि, थंब इम्प्रेशन हूंदा आहिनि, ऐं डिस्प्यूट अवॉइड करे था सघूं विथ रिगार्ड टू द जेन्युइननेस ऑफ द विल. विल जी जेन्युइननेस
उहो अवॉइड करे था सघूं। रजिस्टर ई करण। त विल जो हिकु पार्टियुनि खे घणा दफ़ा ईअं थींदो आहे कि विल करे छॾी आहे त हुन में कुझु अल्ट्रेशन छा करणा आहिनि, कीअं करणा आहिनि, कंहिंखे प्रॉपर्टी मिले थी नथी मिले, त विल खे अल्टर या रिवोक या चेंज या सब्सिक्वेंट विल कीअं छा थींदो आहे, कीअं करे था सघूं? सम्झो अॼु विल कई आहे, पाण प्रॉपर्टी हुनखे कंहिं बि वारसदार खे ॾियणु चाहींदा या थर्ड पार्टीअ खे ॾियणु त चाहींदा, पर अॻिते हली पाण खे ईअं लॻे थो भई हिनखे ॾियण जहिड़ो न आहे, पाण ॿिए खे ॾियणु चाहियूं था त विल हिकिड़ो ॿियो रजिस्टर कराए सघिबो आहे। यानी एक्सपायर थियण खां पोइ जेको विल करायूं उहो फाइनल लास्ट विल जेको आहे उहो एक्सपायर फाइनल खां पहिरियों। लास्ट विल विल बी द फाइनल। फाइनल त उन केस में पार्टीज चेंज भी करे था सघनि ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, चेंज करे लाइफ टाइम चेंज करे था एज मेनी एज विल दे कैन मेक, बराबर रिवोक भी था करे सघनि। ऐं तव्हांजे चइण जे हिसाब सां अगरि हिकु वारसदार खे ॾिनी आहे, फ्यूचर में अगरि उन्हनि खे उहो वारसदार खे चेंज करिणो आहे त उहो चेंज करे था सघनि। ऐं प्रॉपर्टी अगरि फ्यूचर में सेल करे था छॾनि या बाय था करनि त हुन में अल्टरेशन करे विल में वो अनदर कोडिसिल टू विल ठाहे करे वो सब कंप्लीट करे था सघनि, राइट? धीरज भाई हिन में हिकु ॻाल्हि मां ॿी चवंदुमि, माण्हू 18 साले जो आहे कि 80 साले जो आहे, पर तव्हांजे नाले पंहिंजी प्रॉपर्टी आहे त मां सजेस्ट कंदुमि ऐं एडवाइस कंदुमि पंहिंजो विल ठाहे रखो, छो त तव्हांजी प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ न थिए, तव्हांजी प्रॉपर्टी तव्हांजे डेथ खां पोइ बि प्रॉपर यूज़ थिए, उहो हिकु टूल आहे जेको विल आहे, जंहिंमें तव्हां हुन पंहिंजी प्रॉपर्टी जो यूज़फुल नमूने सही नमूने यूज़ कराए सघो था। ओके, त नरेंद्र सर मुंहिंजो हिकु क्वेश्चन आहे तव्हां ते आहे कि जनरली प्रोबेट ऑफ विल जाम असां ॿुधंदा आहियूं, विल जे रिलेटेड अगरि ईंदो आहे त प्रोबेट ऑफ विल असांखे कराइण लाइ असांखे घणा दफ़ा ॿुधणु ईंदो आहे, त व्हाट इज प्रोबेट ऑफ विल? विल प्रोबेट ऑफ विल में छा थींदो आहे? बेसिकली विल में प्रॉपर्टी असां बैंक्वेट कंदा आहियूं, असां पंहिंजी प्रॉपर्टी भई कंहिं XYZ खे ॾींदा आहियूं, बराबर। हाणे विल में सपोज असां जंहिं बि XYZ खे प्रॉपर्टी ॾिनी आहे, असां बैंक्वेट कई आहे, उन केस में उहा प्रॉपर्टी उन जे नाले ट्रांसफर नथी थिए, या त ॿिया जेके लीगल हेयर्स आहिनि, वारसदार आहिनि, उहे विल खे चैलेंज था कनि, भई उहो विल खे एक्सेप्ट नथा कनि, लीगलिटी उनजी विल जी चैलेंज थिए थी, त उन केस में विल जा जेके बेनिफिशियरीज़ आहिनि या विल में जेको एग्जीक्यूट्रिक्स रखियो वियो आहे उहो कोर्ट में वञी करे प्रोबेट इशू कराए सघे थो, उन बेस ते उहा प्रॉपर्टी उन माण्हू जे नाले जंहिंखे ॾिनी वई आहे विल में उन जे नाले ट्रांसफर थी। प्रोबेट ऑफ विल कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? प्रोबेट ऑफ विल इज नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल भी कान्हे, इट इज अ नेसेसिटी। जॾहिं कोई डिस्प्यूट खड़ो थिए थो उन विल जे बारे में तॾहिं तव्हांखे प्रोबेट वठणो पवंदो। तो प्रोबेट ऑफ विल जेन्युइननेस ऑफ विल अगर डिसाइड करनी है तो केर भी इंडिविजुअल जंहिंखे मिले थो या त एग्जीक्यूटर वो प्रोबेट ऑफ विल लाइ अप्लाई करे था सघनि। बिल्कुल। अच्छा सर, हिकिड़ो जाम टाइम खां मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी जॾहिं खां सोसाइटी ये सब चवंदा आहिनि त सोसाइटी नॉमिनेशंस उहे चवंदा आहिनि कि सोसाइटी में नॉमिनेशन कराइण खपे, सोसाइटी में ये थींदो आहे त सोसाइटी नॉमिनेशंस एंड विल व्हाट इज द डिफरेंस? उन में छा डिफरेंस है? सोसाइटी नॉमिनेशन या विल, व्हाट इज बेटर? विल इज ऑलवेज बेटर, छो त नॉमिनेशन सां प्रॉपर्टी जो ओनरशिप ट्रांसफर नथो थिए। विल में जेको तव्हां ओनरशिप ट्रांसफर थींदी आहे आफ्टर डेथ, ठीकु आहे, त सपोज नॉमिनेशन भी आहे ऐं विल भी आहे, त नॉमिनेशन एक्स जो आहे ऐं विल में वाई खे प्रॉपर्टी बिक्वेट कई वई आहे, ॾिनी वई आहे, त उहो वाई खे ई प्रॉपर्टी मिलंदी, एक्स खे न मिलंदी। तंहिंजे करे विल इज ऑलवेज बेटर देन नॉमिनेशन। Okay, now in simple terms, will prevail. Yes, will prevail over the nomination. Okay. ॿियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नॉमिनेशन सां आहे कि सोसाइटी में अगर वो नॉमिनी तरीके हिकु वारसदार खे रखियो आहे, या घणा दफ़ा ईअं इंसिडेंट थींदा आहिनि कि हस्बैंड जो नॉमिनी वाइफ हूंदा आहिनि, त उन केस में सोसाइटी नॉमिनी तरीके वाइफ खे ऐड कंदा आहिनि, त उन में कंहिंजा अगर कोई गुज़ारे थो हुन सोसाइटी मेंबर में, त हुन में वारसदारनि खे छा राइट्स हूंदा आहिनि कि नॉमिनी खे राइट्स हूंदा आहिनि? उन थोरो
छा करे थो सघिजे? बेसिकली जेके बि लीगल हेयर्स आहिनि, सपोज विल थियल आहे त उन बेस ते प्रॉपर्टी ट्रांसफर थींदी उन जे नाले ते, पर विल न थियल आहे त नॉमिनी जे नाले ते खाली ट्रांसफर न थींदी प्रॉपर्टी, उन खां सवाइ जेके लीगल हेयर्स आहिनि उहे बि क्लेम करे सघंदा आहिनि उन प्रॉपर्टी में। सपोज कोई इंटेस्टेड गुज़ारे थो वञे बिना विल कए एक्सपायर थिए थो, त उन केस में उन जा जेके बि लीगल हेयर्स आहिनि, वाइफ आहे, ॿार आहिनि, जेके बि क्लास 1 लीगल हेयर्स असां चवंदा आहियूं, उन्हनि सभिनीनि जो राइट्स उन प्रॉपर्टी में रहंदो। तो ओनली नॉमिनी खे राइट्स न हूंदा आहिनि, सभई वारसदारनि खे राइट्स मिलंदा आहिनि तव्हांजे? हाँ बिल्कुल सभिनी वारसदारनि खे राइट मिलंदा। ओके दीपक सर, जीअं ॻाल्हि थी हाणे विल, त विल सां सम्झो जेकी थींदा आहिनि उहो थींदा, पर कोई हाणे अननेचुरल डेथ्स थी आहिनि त विल करे विया न आहिनि, विल जे बिना डेथ्स थी आहिनि, त उन केस में वारसदारनि खे छा राइट्स मिलंदी आहे? कहिड़ी प्रॉपर्टी में वारसदारनि जो छा रहंदो आहे? मुंहिंजे नाले प्रॉपर्टी आहे ऐं उहो एक्सपायर थी वियो आहे, पर हुन विल न कयो आहे। हलो, हुन विल न कयो आहे त लीगली जेके बि वारसदार आहिनि इंक्लूडिंग डॉटर्स, उहो वारसदार ॻणिया वेंदा आहिनि, यानी टोटली हेयर्स वारसदार आहिनि। विल सां उन्हनि खे वारसदारनि खे राइट्स प्राप्त थींदा आहिनि, त हुन में इंक्लूडिंग डॉटर्स? इंक्लूडिंग डॉटर्स। ओके, विल में जेकी प्रॉपर्टीज़ आहिनि, विल जे सिवाय जी प्रॉपर्टीज़ आहिनि जंहिंमें विल न करेल आहे, त प्रॉपर्टी उहा इंटेस्टेट सभिनी हेयर्स खे मिलंदी आहे इंक्लूडिंग डॉटर। अगर उन केस में कोई वारसदार प्रॉपर्टी पंहिंजे ॿिए भाउ खे ॾियणु चाहे थो, त उन में छा प्रोसेस थींदी आहे ऐं उन में छा करे थो सघिजे? उन में जंहिंजे इहे सम्झो वारसदार कंहिं बि हिक खे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करणु चाहींदा हुजनि त हिकु रिलीज दस्तावेज़ थींदो आहे 300 रुपया स्टैम्प पेपर ते, उहो रजिस्टर कराए हिक जे नाले ट्रांसफर करे सघंदो आहे। रिलीज डीड थींदी आहे जॾहिं कोई एक्सपायर थियण खां पोइ कोई हक़ कमी हक़ ॿिए खे ॾिए थो फैमिली मेंबर्स खे, त हुन लाइ रिलीज डीड थींदी आहे। नॉर्मल चार्जिस हूंदा 300 रुपया स्टैम्प में रजिस्टर थी नॉर्मल। ओके, ये थी ॻाल्हि कि वारसाई में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी कंहिंखे मिले थी हुन में रिलीज था करनि, पर फैमिली में हिकु ओनर आहे, हिकु ब्रदर ओनर आहे, ॿिए ब्रदर खे ॾियणु चाहे थो, त उन केस में प्रॉपर्टी छा करणु, प्रॉपर्टी कीअं ट्रांसफर थिए विदाउट कंसिडरेशन? गिफ्ट रस्ते ट्रांसफर थी सघंदी आहे, उहो गिफ्ट रजिस्टर कराइणो पवंदो आहे, उन स्टैम्प ड्यूटी भरणी पवंदी आहे। गिफ्ट जे थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर थींदे त गिफ्ट में विदाउट कंसिडरेशन थींदो आहे, त वॉट उन में स्टैम्प ड्यूटी कीअं कैलकुलेट कंदा आहिनि? स्टैम्प ड्यूटी जंतरी मुजिब हूंदी आहे, 4.9 लॻंदी आहे जंतरी मुजिब। ओके, त गिफ्ट जे थ्रू थींदे। नरेंद्र सर, मुंहिंजो क्वेश्चन तव्हांखे आहे कि गिफ्ट जेकी कंदा आहिनि त गिफ्ट में whether it is absolute or not, whether it is revocable or not, गिफ्ट में छा हूंदा प्रोविजन? धीरज भाई, गिफ्ट जॾहिं हिकु दफ़ो मां कई कंहिंखे बि हुनजो रजिस्ट्रेशन थी वियो त उन किसे में गिफ्ट इज़ एब्सोल्यूट। मुंहिंजो ट्रांसफर मां जेको करे ॾेई छॾियो, जंहिं गिफ्ट एक्सेप्ट कई, त उन माण्हूअ खे उहो एब्सोल्यूट ऑनरशिप वेंदी हली आहे। तंहिंजे करे उहो गिफ्ट डीड जेको आहे उहो रिवोकेबल कान्हे। हिकु दफ़ो मां गिफ्ट करे छॾी त मुंहिंजे हथ मां प्रॉपर्टी वही हली, ऐं जंहिं एक्सेप्ट कई गिफ्ट उन जे नाले थी वेंदी आहे। तंहिंजे करे गिफ्ट इज़ नॉट रिवोकेबल। त गिफ्ट इज़ एब्सोल्यूट ऐं हुन टाइम ते ही हुन पार्टी खे, हुन रिलेटिव खे वो प्रॉपर्टी मिली वेंदी आहे, राइट? गिफ्ट ऐं विल में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वई आहे नरेंद्र सर, त गिफ्ट में प्रॉपर्टी में केॾी महिल हक़ प्राप्त थींदा आहिनि ऐं विल में केॾी महिल राइट्स प्राप्त थींदा आहिनि? गिफ्ट में त जंहिं ॾींहुं मां रजिस्ट्रेशन करायो, बराबरि आहे, जेॾी महिल मां गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड करायो उन ॾींहं खां उन मोमेंट्स खां उहे ट्रांसफर थी वेंदा आहिनि राइट्स जेके ओनरशिप जा आहिनि। वेरएस विल में त आफ्टर डेथ खां पोइ जेको माण्हू विल करे थो, जेको माण्हू बेनिफिशियरी आहे, उन जी डेथ खां पोइ उनखे उहे राइट्स मिलंदा आहिनि।
ऐं जीअं कि अॻियां मां पहिरियों थोरो डिस्कस कयो भई इन केस हुन में कोई डिस्प्यूट थियनि था त प्रोबेट वठी करे पोइ ट्रांसफर थींदी आहे। नॉर्मल किस्से में सभु स्मूथ आहे, कंहिंजो कोई डिस्प्यूट कान्हे त उहो स्मूथली ओॾी महिल ट्रांसफर थी वेंदी आहे। So will demise ते applicable थींदी या गिफ्ट डीड फ्रॉम द वेरी मोमेंट उते चालू उन्हनि खे राइट्स मिली राइट्स चालू थी ऐं हुन बेसिस ते नेम ट्रांसफर ऐं फॉर्मेलिटीज़ करे सघनि था ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। हुन में वेट कुझु न करिणो पवंदो कि कंहिंजी डेथ थिए या न थिए। ओके दीपक सर, हाणे हिकु क्वेश्चन अहिड़ो आहे कि जॾहिं प्रॉपर्टी बाय ऐं सेल कंदा आहिनि त उन में उन खां पोइ असां जनरली ॾिसंदा आहियूं कि बायर सेलर प्रॉपर्टी कंप्लीट थियण खां पोइ बायर प्रॉपर्टी जी फाइल रखी छॾंदो आहे। त उन केस में ट्रांसफर थियण खां पोइ छा प्रोसेस जनरली करणु खपे? कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करण खां पोइ घणेई माण्हू घर ई रखे छॾींदा आहिनि, पेपर्स ध्यानु न रखंदा आहिनि, पर गवर्नमेंट रेकॉर्ड जीअं त 7/12 सिटी सर्वे आहे, टैक्स बिल आहे, लाइट बिल आहे या सोसाइटी रेकॉर्ड में शेयर सर्टिफिकेट में ट्रांसफर कराइणु ज़रूरी आहे। ओके सर, हिन में हिकिड़ी ॿी बि जीअं ॻाल्हि थी कि एक्सचेंज डीड तव्हां चयो जंहिंमें ट्रांसफर थींदो आहे, त एक्सचेंज में कहिड़े नमूने सां ट्रांसफर प्रॉपर्टी थींदी आहे? एक्सचेंज में कीअं हूंदो भई सम्झि हिकु प्रॉपर्टी ए जे नाले आहे, बी जे नाले करणी आहे ऐं उहे ट्रांसफर करणी आहे, अदला बदली यानी एक्सचेंज जो दस्तावेज़ हूंदो आहे, उन में सिंगल स्टैम्प ड्यूटी लॻंदी आहे ऐं प्रॉपर्टी ट्रांसफर थी वेंदी आहे। त एक्सचेंज मतिलबु हिकु प्रॉपर्टी जे अगेंस्ट में ॿी प्रॉपर्टी, यस, हुन में ॿिन्हिनि जे मालिक जी प्रॉपर्टी एक्सचेंज थींदी। हाँ हाँ बरोबर। ओके नरेंद्र सर, घणा किस्सा अहिड़ा थींदा आहिनि कि आफ्टर सेल डीड, आफ्टर ट्रांसफर, झूना ड्यूस, झूना क्लेम्स, झूना कुछ डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी, अहिड़ा किस्सा थींदा आहिनि। त सेल डीड करण खां पहिरियों जे ड्यूज़, उन जे ड्यूज़ अगरि कुछ झूना अचनि था पार्टी खे, त उन केस में बायर खे छा सेफ्टी हूंदी आहे? बेसिकली जेॾी महिल प्रॉपर्टी जी डील थींदी आहे ओॾी महिल ई ॻाल्हियूं डिसाइड थी वेंदियूं आहिनि। भई सपोज़ असां डिसाइड कयो आहे एज़ इज़ वेयर इज़ बेसिस ते वठण जो, त उन जा जेके बि ड्यूज़ आहिनि पुराणा या जेके बि गवर्नमेंट जा ड्यूज़ आहिनि, टैक्सिस आहिनि, लेवीज़ आहिनि या लाइट बिल आहे या सोसाइटी जो मेंटेनेंस आहे, उहो सभु पोइ परचेसर भरींदो आहे। पर नॉर्मल किस्से में जेॾी महिल डील थींदी आहे उन में ईअं डिसाइड हूंदो आहे भई जेसि ताईं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कयूं था, जंहिं ॾींहुं असां सेल डीड कयूं था, उन ॾींहं ताईं जा जेके बि टैक्सिस आहिनि, लेवीस आहिनि, मेंटेनेंस आहे, उहो सभु उन सेलर खे भरणो हूंदो आहे। उन खां पोइ जी जेका जवाबदारी आहे उहा परचेसर जी हूंदी आहे। इन सिंपल टर्म्स असां चई था सघूं कि सेल डीड में अगर टर्म्स कंडीशन में एज इट वेरिस बेसिस ना है एंड ड्यूज झूना ऐं नवनि जो कुछ ना है, त झूननि जी लाइबिलिटी सेलर जी ईंदी आहे, नवे जी बायर जी ईंदी आहे। सेल डीड इज द डिवाइडिंग लाइन जंहिंमें फ्यूचर में भी क्लेम्स विथ रिगार्ड टू झूनी प्रॉपर्टी अचे तो, तो उन केस में सेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहंदो आहे। यस, बिल्कुल। अच्छा, त हिकु क्वेश्चन, हिकु क्वेरी अहिड़ी बि आहे कि गिफ्ट डीड जॾहिं कंदा आहिनि इंटरेस्ट, मतिलबु ॿ भाउरनि जे विच में हिकु प्रॉपर्टी ॿी प्रॉपर्टी खे गिफ्ट कंदा आहिनि, त हुन में सोसाइटी में ट्रांसफर फी वठंदा आहिनि, त हुन में ट्रांसफर फी एप्लीकेबल रहंदी आहे? बिल्कुल, प्रॉपर्टी जेका भी ट्रांसफर थिए थी, घणी दफ़ा हिन में सोसाइटी बायलॉस ही कम कंदा आहिनि, रूल्स ऐं रेगुलेशन जेके सोसाइटी जा ठहियल हूंदा आहिनि। घणी दफ़ा ब्लड रिलेशन में नॉमिनल ट्रांसफर फी वठी कम कंदा आहिनि। घणनि किस्सनि में छो त ही गिफ्ट जी डीड थी जे ट्रांसफर थिए, बेसिकली भले विदाउट कंसिडरेशन आहे, पर इट इज़ अ ट्रांसफर, सो सोसाइटी घणी दफ़ा उहा ट्रांसफर फी चार्ज कंदी आहे। सेम जेको केस आहे, जेको ट्रांसफर, दिस इज अ ट्रांसफर, ऐं विल जे रस्ते कंहिंखे मिले थी या वारसाई हक़ ते मिले थी, त हुन केस में सोसाइटी ट्रांसफर फी वठी सघनि था? न, विल जे केस में इनहेरिटेंस में सोसाइटी ट्रांसफर फी न वठी सघंदी आहे। नॉर्मल जेका हुननि जी एडमिनिस्ट्रेटिव फी हूंदी आहे 10, 20, 50, 100 रुपया जेका भी हुजे, उहा वठी सघंदा आहिनि। बाक़ी ट्रांसफर फी न वठी सघंदा आहिनि इनहेरिटेंस जे केस में, विल जे केस में।
बाक़ी सेल डीड में त उहे वठंदा ई आहिनि। गिफ्ट में बि मां चयोमांव जीअं घणेई दफ़ा हुन में ब्लड रिलेशन में आहे त न वठंदा आहिनि। बाक़ी जेको ब्लड रिलेशन जो क्लोज ना आहे टर्म्स में बायलॉस में त उन में उहो ट्रांसफर फी वठी सघंदा आहिनि। ओके, सो तव्हांजो चवणु इहो आहे की सोसाइटी नॉर्म्स में ट्रांसफर हुजे त ट्रांसफर फी गिफ्ट के सेल हुजे हुन सां लॻंदी। हा ऐं अगरि वारसाई हक़ सां मिले थी या विल सां मिले थी या हिकु ब्रदर खे रिलीज जे थ्रू मिले थी त उन केस में सोसाइटी ट्रांसफर फी न वठंदा आहिनि। ट्रांसफर में बिल्कुलु। ओके, थैंक यू सर। तव्हां पैनलिस्ट जो एनलाइटिंग असां सेशन ॿुधो एंड एवरीथिंग वाज गुड। आशीष भाई, पैनलिस्ट से कुछ क्वेश्चंस कुछ भी पूछना है या आपको कुछ भी क्वेरी है ट्रांसफर के रिलेटेड, विल के रिलेटेड, लिटिगेशन के रिलेटेड, काफी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। फिर भी कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। जी, पहिरियों क्वेश्चन आहे, what action we can take if builder does not hand over the registered society to flat owners? बिल्डर अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड जेका कयल आहे उहा सर्विस सोसाइटी अॼुकल्ह थींदी आहे। पहिरियों वांगुरु जेका कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई उहा नवी सिर्फ़ु सर्विस सोसाइटी हूंदी आहे। त हाणे जेके नवा प्रोजेक्ट्स अचनि था उन में उन जूं टर्म्स ऐं कंडीशन फिक्स थियल हूंदियूं आहिनि। भई विदिन 3 इयर्स टाइम या 5 इयर्स टाइम में बिल्डर मेंटेन कंदो, उन खां पोइ तव्हांखे ॾिनी वेंदी उहा सोसाइटी मेंटेन करण लाइ। त उहो पीरियड जॾहिं पूरो थिए त उन खां पोइ बि बिल्डर नथो ॾिए त वी हैव टू अप्रोच द रेरा। भई बिल्डर इन टाइम पूरो थी वियो आहे, उन खां पोइ बि असांखे सोसाइटी जो रिकॉर्ड न ॾिनो वियो आहे। या त पोइ छा आहे, असांजी सोसाइटी जी AGM करे, माना असां मेंबर्स जेके आहियूं उहा AGM करे वी कैन टेक ओवर द सोसाइटी फ्रॉम पासिंग द नेसेसरी रिजोल्यूशंस। ऐं ओल्ड स्कीम्स में छा प्रोविजन रहंदो? जे स्कीम्स में रेरा गाइडलाइंस हुई या न, या रेरा जे पहिरियां ई स्कीम ठही वई आहे? रेरा खां पहिरियों जूं जेके सोसाइटियूं आहिनि, जेके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आहिनि, उन में त मोस्टली बिल्डर्स त हिन वक़्त ताईं त ॾेई चुका हूंदा। सपोज अञा बि कंहिं सोसाइटी में प्रॉब्लम आहे त जीअं कि मां सजेस्ट कयो, उन में हिकिड़ो ई रीज़न असां एक्शन खणी सघंदा आहियूं। भई असां पंहिंजी AGM कॉल आउट कयूं, उन में असां पंहिंजा रिजोल्यूशन पास कयूं ऐं उन खां असां जेके बि नवा उहिदेदार अपॉइंट करे सोसाइटी जो मेंटेनेंस असां पाण चालू करे छॾियूं। बाक़ी सवाल रहंदो रेकॉर्ड्स जो। रेकॉर्ड्स जे लाइ असां वटि 2 ऑप्शन आहिनि। हिकु असां बोर्ड ऑफ नॉमिनीज़ जी कोर्ट में वञी करे उहो सूट फाइल करे असां रेकॉर्ड उन खां क्लेम करे सघंदा आहियूं। ऐं सपोज उहो मेंबर्स जे विच जो फाइल करे उन जो रेकॉर्ड्स असां क्लेम करे सघंदा आहियूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेरा रजिस्ट्रेशन आहे प्रोजेक्ट में ऐं BU कोन थी अचे त मेंबर छा था करे सघनि? हाणे त BU परमिशन बिना कोई बाक़ी जे अॻियां उनखे फैसिलिटीज़ मिलंदी ई कान नए रेरा जे रजिस्ट्रेशन जे हिसाब सां। तंहिंजे करे BU त परमिशन हाणे नयूं बिल्डिंगुनि में सभिनीनि में अची थो वञे, पर इन केस नथो बि अचे तो रेरा विल टेक केयर ऑफ इट कि बिल्डर हुनजो BU परमिशन प्रोवाइड करे। ॿियो क्वेश्चन आहे, जीअं लोन वठंदा आहियूं त बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल्डर के टाइम से रीइंबर्समेंट कोन थी करे त हु विल बी पेनलाइज्ड, लेंडर और द बायर? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? जीअं असां लोन ते फ्लैट वरितो ऐं कंस्ट्रक्शन थींदो, ए प्रमाणे लोन जो डिसबर्समेंट थींदो त कंस्ट्रक्शन जी स्टेज अची वई आहे पर बैंक बिल्डर के डिसबर्स कोन थी करे फंड, त टेक्निकली केर लाइबल आहे इंटरेस्ट जे लाइ या डिलेड पेमेंट जे लाइ? बायर और द बैंक जेका पाण होम लोन वरितो आहे? न, बिल्डर के त ॾिसो न मिलंदी कान इंटरेस्ट, छो त एज पर द शेड्यूल जेको उनजो असांजो पेमेंट जो थियल आहे नया एग्रीमेंट जे हिसाब सां, रेरा जे हिसाब सां, उन शेड्यूल जे हिसाब सां ई पेमेंट रिलीज थींदो। ऐं जेतिरो रिलीज थियो आहे या जेतिरो कंस्ट्रक्शन थियो आहे त उनजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेका लोन ई आहे, जेको लोन वठे थो उनजी रहंदी। बाक़ी अॻियां फर्दर पेमेंट्स त उनखे वञे ई कान थो बिल्डर खे, त उनजो कोई क्वेश्चन ईंदो ई कान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे,
if a property is bought by power of attorney, what is the legal status? And next is, what if the giver of the power of attorney dies? Now, once the power of attorney who has given the power expired, the moment he expires, the power ceases to be in existence. Therefore, he cannot utilize the power. And remaining question what you have asked me is that once the power of attorney has been used by the person who has been given the power of attorney, it is the duty and he is हू पंहिंजो पाण खे माना जेके बि रेक्टिफाई कंदो सभु कम जेके बि उनजे पावर ऑफ अटर्नी कया उनजी ऑनरशिप बि उनखे रहंदी, न कि पावर ऑफ अटर्नी खे। पावर ऑफ अटर्नी जीअं अगरि जेको क्वेश्चन मां सम्झां थो उन हिसाब सां ईअं कि पावर ऑफ अटर्नी ते अगरि कोई डॉक्यूमेंटेशन थी वियो आहे त उहो उन टाइम ताईं उन खां पोइ जॾहिं डॉक्यूमेंटेशन थी वियो आहे, सेल डीड थी वई आहे, त उन टाइम में सेल डीड कंप्लीट थियण खां पोइ अगरि पावर ऑफ अटर्नी जी डेथ थी थिए त सेल डीड खे कोई इफेक्ट न कंदो। हुन जॾहिं यूटिलाइज़ करणो पावर हुन टाइम ते हुन यूटिलाइज़ करे छॾियो आहे त उन पावर ऑफ अटर्नी जो जेके बि एक्ट्स आहिनि, अगरि ग्रांटी जंहिंखे पावर मिलियल आहे कि तूं एक्स कमु करे अचिणो आहे, एक्स सेल डीड करे अचिणी आहे, त दैट विल बी बाइंडिंग ऑन दी पावर गिवर ग्रांटर। पावर ग्रांटर उन खां पोइ फिरी नथो सघे ऐं सेल डीड या कोई डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्मेलिटी कंप्लीट थी वई आहे त उहो बाइंडिंग रहंदी पावर ग्रांटर खे जंहिं फॉर्मेलिटी ये सभु कंप्लीट ॾिनी आहे। आशीष भाई नेक्स्ट। Next question is, if 7/12 doesn't have by builder, can we purchase the property? What is the difference between master file and regular file after purchasing the property? पार्ट में ॿिनि पार्टनि में हिकु 7/12 जो कुझु चयो तव्हां, बराबर? हाँ, 7/12 में नाम बिल्डर जे पास 7/12 कोन आहे त पाण प्रॉपर्टी परचेस करे था सघूं। 7/12 बेसिकली असां ऑप्टेन बि करे सघंदा आहियूं, बिल्डर नथो बि जे त असां ऑनलाइन बि अॼुकल्ह 7/12 जो उतारो निकिरी वेंदो आहे, त उन में अगरि नालो रिफ्लेक्ट नथो करे त उन सां टाइटल डिफेक्टिव आहे ईअं न चवाइजंदो, उहो प्रोसेस करे असां उन जो नालो माना ऐड कराए सघंदा आहियूं। नंबर 1। नंबर 2, तव्हां जेको ॿियो सवाल कयो भई रेगुलर फाइल, मास्टर फाइल जेको हूंदो आहे उन में ज़मीन जा जेके दस्तावेज हूंदा आहिनि, बेसिकली जेको बिल्डर परचेस करे थो त मास्टर फाइल में उहो सॼा माना उन जा लैंड जा जेके रिकॉर्ड्स आहिनि उहे हूंदा आहिनि। उन खां सवाइ उन जेके परमिशन्स वरितियूं आहिनि, NA परमिशन आहे, BU परमिशन आहे, उन जेकी बि बेसिकली रजा चिठी वरिती अथई, डेवलपमेंट परमिशन वरिती अथई, रेरा जो रजिस्ट्रेशन आहे, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो जेके परमिशन्स आहिनि, उहे सभु जेके बि एंटायर परमिशन आहिनि उहे मास्टर फाइल में हूंदियूं आहिनि। उहे बैंक बेसिकली पाण वटि रखंदियूं आहिनि जेके उन्हनि जो प्रोजेक्ट अप्रूव कंदियूं आहिनि, ऐं उन खां पोइ जेको इंडिविजुअल परचेसर वेंदो आहे उन्हनि वटि, बैंकुनि वटि, त उहे बाक़ी डॉक्यूमेंट्स न घुरी, ख़ाली उन जा जेके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स घुरंदा आहिनि उन यूनिट पुरता, त उनखे माना रेगुलर फाइल चयो वेंदो। Next question is, can we make a single line will? All my property after my death will be given to Mr. or Miss XXX. Is this a legal will? Will की basically legal requirement to witnesses है। What I am writing is nothing to basically concern about it। मैं किसको क्या दे रहा हूँ वो स्पेसिफाई होना चाहिए, बेसिकली प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि इसमें ये प्रॉपर्टी में इस आदमी को दे रहा हूँ। इतना अगर आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं भाई ये किया गया है, तो बाकी 2 विटनेसेस है तो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर जनरल विल लिखी हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेरी जितनी भी ऑफिस है या मेरी जितनी भी शेयर्स हैं वो मैं किसी को दे रहा हूँ, स्पेसिफिक शेयर वाइज या कंपनी वाइज या ऑफिस नंबर वाइज नहीं लिखूं तो भी वैलिड विल रहेगी? नहीं, बेसिकली उसमें आइडेंटिफिकेशन का अगर क्वेश्चन आता है भाई ये प्रॉपर्टी किसकी है या किस तरह से है, तो वो फिर उसमें एम्बिग्विटी आएगी। इसीलिए विल का जो बहुत ही डिस्क्रिप्शन जो हम प्रॉपर्टी का लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं,
और वो डिटेल्स के साथ ही स्पेसिफाई करते हैं भाई इसको देना चाहिए। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक लीगल एक्सपर्ट से वो विल एग्जीक्यूट ड्राफ्ट करवाएं और लीगल उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो। इसमें से मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि जैसे जो क्वेश्चन है मैं उसको जितना समझता हूँ उसमें ऐसा है कि इंडिविजुअल्स स्पेसिफिक जितनी प्रॉपर्टी है, सर के कहने के हिसाब से जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप असर्टन करके उसका जितना हो सके डिस्क्रिप्टिव करके आप करके ऐड कर सकते हैं वो कि ये प्रॉपर्टी सो एंड सो प्लेस सो एंड सो एरिया और उसका ये नंबर है, उसका ये बिल्डिंग नेम है, इसका ये लोकेशन है, उसका ये सर्वे नंबर, जितना हो सके डिस्क्रिप्टिव करके कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी किसको दे रहे हैं वो आप उसका क्लियरिटी रखें और उस सब में अगर वो चीज के बाद भी अगर आपकी ये 4 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट्स ये सब देने के बाद भी अगर डिटेल्स रहती है तो एक रेसिड्यू का क्लॉज होता है, एक जनरल क्लॉज होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है और अगर मैं फ्यूचर में बाय करता हूँ या ये मेरे नाम पे मुझे फ्यूचर में किसी के थ्रू मिलती है, लाइक ऑन एक्सपायरी ऑफ माय हस्बैंड मुझे वो प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड के थ्रू मिलती है, उसका शेयर मिलता है, तो वो सबका एक जनरल क्लॉज भी लिख के एक कोई एयर को दे सकते हैं कि ये रेसिड्यूरी क्लॉज के हिसाब से इतना अमाउंट का इतनी चीजें मैं इसको ये दे रही हूँ, ऐसा करके भी एक विल का क्लॉज हो सकता है। Okay. Next question is residential property purchased in year 2017 and possession given in 2019. As per RERA registration documents, it is mentioned that 2 years running maintenance for year 2020 and 2021 is already included. Now, due to pandemic, the builder has not completed amenities, other infrastructure. Is any remedy available to resident owners because builder has not given any concession in maintenance amount, but and also has not completed the work? Yes, they can always complain to the RERA authority about this. Okay. Then next question is, if husband and wife died and son and daughter is minor, then what is the consequence? Can you repeat the question, please? If husband and wife are died and the children are minor, then what will be the consequences in transfer of property? Will it be transferred in minor's name? Yes, it will be transferred on the minor name with a condition that somebody should from the family, other family member can be the trustee of that property. Guardian, They attain the age of majority. Guardian would be appointed by the court, Okay. and he will be protecting the minors, और वो minors के लिए behalf पर act करेंगे और future में sell करना है तो with the consent of the court they can sell the property, guardian consent, with permission of the court and for the benefit of the minors in case of their marriage, their education, some necessity is to be shown, and the court may permit that thing. Next question is, if a buyer wants to buy a property for which the seller has only letter of allotment from builder and receipt, but no sale deed, then can that property be bought? Yes, the rights of the purchase can be transferred on this, because on the basis of the allotment, property is not transferred on the name of the so-called seller. So right of the purchase can be transferred through the agreement also. If a person dies without will, what is the procedure for transferring the property to the heirs? It can be transferred on the all legal heirs, whatever the legal heirs left by the leakees.
if it is required, we can obtain the succession certificate from the court for the transfer of the property. What is advisable in blood relation, registered sale deed or registered gift deed? Gift deed. Without consideration, register. Registered gift deed. Yeah. Okay. Is registered will or notarized will having same legal validity? Yes, yes, both have the same validity. If builder has allotted one property to many members, how can we come to know that or search about that? Basically, if sale deed is executed on the name, one person's name, then there is a way to search. We can get the entire details from the search of the, as I told you, from the Talati office, Mamlatdar office and Registrar office. But if it is only at the initial stage, only executed agreement to sale, then it is difficult to find out whether the property has been sold to many person or not. For that matter, we discussed पहले सर सां असां टाइटल क्लियरेंस जी ॻाल्हि कई, दीपक सर असांखे सम्झायो कि टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट वठंदा आहिनि, त हुन केस में हुन जी सर्च निकिरंदी आहे, हुन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक थींदा आहिनि ऐं हुन खां पोइ असां पब्लिक नोटिस ॾींदा आहियूं, त पब्लिक खां असां इंटीमेशन ॾेई करे वठंदा आहियूं प्रॉपर्टी, जिते दस्तावेज रजिस्टर थींदा जंहिंमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आहे, त उहो रजिस्टर डॉक्यूमेंट थींदा आहिनि, त उहो सर्च में मिलंदा आहिनि। ऐं कंहिंजो बोझो आहे त 7/12 7/12 में या सिटी सर्वे में उनजी अगर एंट्री आहे त उहो असांखे उहो बि ख़बर पवंदी आहे। प्लस अबाउट दैट पेपर्स, सोसाइटी जा स्कीम जा पेपर्स कुछ हूंदा आहिनि त उहो चेक थींदा आहिनि, त हुन में बि सोसाइटी जे रिकॉर्ड्स में हुन चार्ज हूंदो आहे, त उहो सभु चेक करण खां पोइ पाण खे ख़बर पवंदी आहे कि इट इज़ सोल्ड टू वन पर्सन और मैनी। हुनखे अगरि ॿिए खे वधीक खे ॾिनो त हिकु प्रॉपर्टी ॿिए खे ॾिनी आहे त हुन में रेरा जो बि लॉस आहिनि, प्लस क्रिमिनल एक्शन बि थी सघंदी आहे। न हाणे त हिन में बेसिकली जीअं रेरा रजिस्ट्रेशन जेके बि कंपलसरी नवा प्रोजेक्ट्स आहिनि उन में इहा ॻाल्हि पॉसिबल अथनि ई कान्हे, छो त एग्रीमेंट टू सेल बि हाणे कंपलसरी रजिस्ट्रेबल आहे, त तंहिंजे करे हाणे माना उहो मल्टीपल सेल हाणे पॉसिबल न आहे, पुराणनि में थींदो हो, हाणे उहो पॉसिबल न थींदो। प्लस हुन में हुननि खे ऑडिट्स रिपोर्ट्स में बि लिखी करे रेरा खे अपडेट करणो हूंदो आहे, त उहो जीअं सर चयो कि हाणे उहो पॉसिबिलिटी कान्हे वधीक के एग्रीमेंट करणु, त तव्हां अगरि पेमेंट कई आहे 10% खां मथे पेमेंट करे छॾी आहे त 10% खां पोइ तव्हां यू कैन इंसिस्ट करे 10% पेमेंट करण खां पोइ एग्रीमेंट फॉर सेल कंपलसरी रजिस्टर करायो त तव्हांखे इहे राइट्स बि, इहे बि प्रोटेक्शन मिली। ॿियो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, if the will is executed and registered, after that if a person dies, then any formalities to be done for registration of the property in the name of the legal heir or only society intimation etc needs to be done? मूंखे लगे तो उन्हनि जो क्वेश्चन आहे कि हिकु दफ़ो विल रजिस्टर्ड थी वई आहे पोइ ऑटोमेटिक ट्रांसफर थी वेंदी नॉमिनी जे नाले में? रजिस्टर्ड विल खां पोइ जेॾी महिल बि हुनजे लीगल हेयर्स खे इहा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करण जी ॻाल्हि अचे थी त उन केस में असांखे बेसिकली जिते जिते गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या जेके बि ऑथोरिटीज़ में असांखे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करणी आहे त उन प्रॉपर्टी में उन किसे में असांखे उते विल सां गॾु एप्लीकेशन ॾेई करे ट्रांसफर कराए सघूं था। पर इन केस असांखे उहो डिस्प्यूटेड आहे या कोई डिस्प्यूट खड़ा थियनि था या कोई विल चैलेंज थिए थो त उन किसे में असांखे, जीअं मां अॻियां बि चयो भई, प्रोबेट वठी करे असांखे पंहिंजे नाले ट्रांसफर कराइणी पवंदी, जेको बेनिफिशियरी आहे हुनजे नाले ट्रांसफर थींदी। एडिशनली सोसाइटी रिकॉर्ड्स में भी नाम ट्रांसफर हुनजो फॉर्मेलिटी चरण, रेजोल्यूशन पास करे नेम ट्रांसफर चरण। Next question is, what a developer or a builder is bound only for 5 years after BU permission or some action can be taken even after 5 years? 5 साल जी वारंटी जो क्लोज विझो वियो आहे रेरा जे तरफ़ां, तंहिंजे करे 5 साल खां पोइ मूंखे नथो लॻे असां कोई एक्शन खणी सघंदासीं।
Okay, I think any Mahesh sir, Jitendra, Surya sir, any questions? हिकिड़ो ॿ क्वेश्चन मूं वटि बि आया आहिनि। हिकिड़ो क्वेश्चन ईअं आहे की प्रॉपर्टी वरिती आहे ऐं उनजा डॉक्यूमेंट कंहिं एक्सीडेंट या फायर जी वजह सां डॉक्यूमेंट लॉस थी विया आहिनि, त उन केस में सेलर ऐं बायर खे छा डॉक्यूमेंट्स कीअं कलेक्ट करनि, कीअं डॉक्यूमेंटेशन थिए, उहो हिकिड़ो सुवाल आहे। त पेपर्स जेके गुम थी विया आहिनि या सड़ी आहिनि त उहो पाण हिकु पेपर में जाहिर नोटिस बि ॾींदा आहियूं ऐं प्लस डुप्लीकेट बि गवर्नमेंट रेकॉर्ड मां निकिरंदा आहिनि। हिकु FIR कराइणी पवंदी आहे भई असांजा झूना ओरिजिनल पेपर्स गुम थी विया आहिनि या सड़ी आहे। उन खां पोइ कंहिं वकील या सॉलिसिटर मां सर्टिफिकेट वठिणो पवंदो आहे भई हिन जा पेपर्स गुम थी विया आहिनि, प्रॉपर्टी हिन जे नाले आहे। थैंक यू। हिकिड़ो ॿियो सुवाल आहे कि शेयर सर्टिफिकेट जी इम्पोर्टेंस घणी आहे कंहिं बि प्रॉपर्टी ट्रांसफर जे केस में? सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट हूंदो आहे ऐं डॉक्यूमेंट खां पोइ शेयर सर्टिफिकेट में नालो ट्रांसफर कराइणो पवंदो आहे। सभिनी सोसाइटियुनि में शेयर सर्टिफिकेट जी वैलिडिटी आहे। हिन में ॿ टाइप जा थींदा आहिनि। हिकिड़ी त हाउसिंग सोसाइटी थींदी आहे जंहिंमें हाउसिंग में मेंबर्स थींदा आहिनि ऐं मेंबर्स खे राइट्स मिलंदा आहिनि, त हुन केस में शेयर सर्टिफिकेट सभ्य खे ओनरशिप राइट्स बि मिलंदा आहिनि हुन प्रॉपर्टी में, जेकी 2001 खां पहिरियों 19/2001 खां पहिरियों जेकी बि सोसाइटीज़ हुआ वो पहिरियों सोसाइटी में अलॉटमेंट पोजीशन अलॉटमेंट मनी मेंबर्स ठाहिण जो प्लस पोजीशन कब्जा ॾियण जो प्लस पेमेंट वठण जी मनी रिसिट्स ॾींदा हुआ ऐं मेंबरशिप राइट्स लाइ शेयर सर्टिफिकेट ॾींदा। त उन केस में ओनरशिप ट्रांसफर थींदी हुई, ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर थींदा। पर अॼु जी तारीख़ में जेतिरी बि सोसाइटी मोस्ट ऑफ बिल्डर अगर सेल डीड करे तो ॾिए त उन खां पोइ उहो सर्विस सोसाइटी कंदा आहिनि। वो सर्विस सोसाइटी मेंटेनेंस पर्पस लाइ हूंदा आहिनि, उन में ओनरशिप राइट्स न हूंदा आहिनि, पर मेंटेनेंस लाइ उन फॉर्मेलिटी लाइ उन में जेके बि क्लॉजेस सोसाइटी नॉर्म्स रखियल आहिनि त उन में उन्हनि खे फुलफिल करणा हूंदा आहिनि कि सोसाइटी मेंटेनेंस लाइ असांखे ये कंडीशंस मेंबर्स के फुलफिल करना है, बट उन में उन्हनि जी कोई ओनरशिप रिलेटेड कोई भी उन्हनि के कोई राइट कान्हे कि सोसाइटी सर्विस सोसाइटी ऑफिस बेयरर्स मेंबर्स के या ओनर्स के कुछ भी प्रेशराइज करे हैरान करे। इट इज दे आर फॉर द मेंटेनेंस पर्पस ओनली। हिकिड़ो ॿियो सवाल आयो आहे हिते कि स्टैम्प ड्यूटी ऐं रजिस्ट्रेशन चार्जिस घणी लॻंदी आहे अगरि लीगल हेयर खे पंहिंजे कंहिं बि रिलेटिव जी डेथ खां पोइ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करणी हुजे त उन सां घणी कॉस्ट इन्वॉल्व आहे? रिलीज डीड में 300 रुपए स्टैम्प पेपर ते 300 रुपए स्टैम्प। तो एक क्वेश्चन आहे व्हाट इज पेडीनामू? पेडीनामू जेको आहे उहो बेसिकली असांखे जेके माण्हू एक्सपायर थी वियो आहे, जेको माण्हू एक्सपायर थी वियो आहे उनजा जेके लीगल हेयर्स आहिनि उनजो सॼो हिकु शेड्यूल ठाहियो वेंदो आहे, उनखे पेडीनामू चवंदा आहिनि। पेडीनामू ऐं विल इक्वल आहिनि? हेलो, पेडीनामू ऐं विल व्हाट इज द पेडीनामू मतलब पेडीनामू एंड विल? पेडीनामू त वारसाई जो चार्ट हूंदो आहे, वारसदार केर केर आहिनि, सो एंड सो पर्सन इन तारीख़ ते गुज़ारे विया आहिनि ऐं उनजा वारसदार आहिनि, उहो असां एफिडेविट ते बि करे था सघूं प्लस कोर्ट जे ऑर्डर सां पाण हुनखे डिक्लेयर कराए सघंदा आहियूं कि ये प्रॉपर्टी जा ये वारसदार आहिनि। ॿियो पेडीनामो एफिडेविट ते थींदो आहे, ॿियो गवर्नमेंट ऑफिस तां बि निकिरंदो तलाटी ठाहे ॾींदा आहिनि, ॿियो कोर्ट जे ऑर्डर सां थींदो। ऐं विल जेको आहे उहो डेट इज अ डिक्लेरेशन विथ रिगार्ड टू द अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द टेस्टेटर। वो पंहिंजी टेस्टेटर पंहिंजी प्रॉपर्टी कीअं ॾियण थो चाहे उन ई आहे, त देयर इज नो कंपैरिजन, ॿिन्हिनि जो कंपैरिजन न थी सघंदो आहे। वो खाली चार्ट आहे हेयरशिप वारसदार जो जेको वो केरु गुज़ारियो आहे उन खां पोइ जो थींदो। ऐं विल इज द टोटली अ डिफरेंट थिंग जंहिंमें डिक्लेरेशन थींदी आहे प्रॉपर्टी जी कहिड़ी तरह जी अरेंजमेंट व्यवस्था चइजे वो थींदी आहे। हिकिड़ो हिते ॿियो सवाल आयो आहे कि कंहिं अॼु खां 20 साल अॻु जॾहिं प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटर्नी ते सेल थींदी हुयूं त कंहिं उन टाइम ते 100 रुपीज़ जे स्टैम्प पेपर ते पावर ऑफ अटर्नी करे वरिती आहे
हाणे उन्हनि खे विकिणणो हुजे त छा उनजी प्रोसीजर छा आहे, माना थोरो क्लियरिफाई कयो प्लीज़। पावर ऑफ अटर्नी सां गॾु हिकु एग्रीमेंट बि हूंदो, उन में पेमेंट वरितल आहे की न उहो सभु लिखियलु हूंदो आहे। हा, ऐं उहे ई असां पेपर में रजिस्टर डिक्लेरेशन करे रजिस्टर कराईंदा आहियूं ऐं उन ई स्टैम्प ड्यूटी उन टाइम जी जेके आहे उहो भरे करे उहो क्लियर कराईंदा आहियूं। इहे जेके रजिस्टर कराईंदा आहियूं इहे डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन ऑफिस में वेंदा आहिनि, डेप्यूटी कलेक्टर उते चेक कंदा आहिनि, उन टाइम ई जंत्री चेक कंदा आहिनि। उहो जेको डिफरेंस ईंदो आहे स्टैम्प ड्यूटी भराए करे वो वैलिड करें। पेडीनामो और सक्सेशन सर्टिफिकेट सेम आ कि उन में भी कुछ डिफरेंस आ? सक्सेशन सर्टिफिकेट त कोर्ट इशू कंदी आहे, बराबर आहे, उहो तव्हांखे कोर्ट में अप्लाई करणो पवंदो त कोर्ट इशू करे ॾींदी सक्सेशन सर्टिफिकेट। वेरएस पेडीनामो कोई बि हिकु लीगल एयर्स एफिडेविट करे डिक्लेयर कंदो आहे भई जेको गुज़री वियो आहे, जेको एक्सपायर थियो आहे, उनजा ही वारसदार आहिनि। वो मामलतदार या इन तलाटी खे वठणो पवंदो सर्टिफिकेट। छा शेयर सर्टिफिकेट खां सवाइ बि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थी सघंदी आहे कि शेयर सर्टिफिकेट कंपलसरी हूंदो आहे कंहिं बि सोसाइटी लाइ? बेसिकली धीरज भाई तव्हांखे हिन बारे में पहिरियों थोरो ॿुधायो विया। 2001 में रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी कंपलसरी थियो, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करणी आहे त रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो। 2001 खां अॻु पहिरियों प्रॉपर्टी जेके बिल्डर्स या सोसाइटी ठाहींदा हुआ बिल्डर्स, उन टाइम ते जेको असांखे ट्रांसफर या असांजी ओनरशिप जो जेको पुरावो ॾींदा हुआ उहो शेयर सर्टिफिकेट, पोजेशन लेटर ऐं अलॉटमेंट लेटर ॾींदा हुआ। ही 3 शयूं ॾींदा हुआ। पर सब्सिक्वेंट सपोज मां ओरिजिनल मेंबर थियमि 2000 में कंहिं सोसाइटी जो, मूंखे इहे 3 शयूं मिलियूं, उन खां पोइ मूंखे प्रॉपर्टी विकिणी आहे त मूंखे सेल डी करणो पवंदो, उहो रजिस्टर थींदो। हाणे उहो छा आहे 2001 खां पोइ सपोज बिल्डर बि ॾिए थो या सोसाइटी बि ॾिए थी असांखे त रजिस्टर्ड करे अलॉटमेंट डीड ठाहे ॾींदा आहिनि या सेल डीड ठाहे ॾींदा आहिनि। तंहिंजे करे रजिस्ट्रेशन जेको हुन वक़्तु कंपलसरी आहे, शेयर सर्टिफिकेट हुन वक़्तु ओनरशिप जो पूरा हूंदो 2001 खां। जूनिन जे बिल्डिंग जी बीयू न आहे त कोई स्कोप के उन्हनि जी बीयू अप्लाई थी सके या कुछ थी सके? बिल्कुलु थी सघंदी आहे। हाणे वक़्तु बि छो त असांजे अहमदाबाद में जेको शुरू में ट्रेंड हलियो 50% खां वधीक बिल्डिंगूं बीयू परमिशन बिना जूं हुयूं, त सभु रेगुलराइज़ करे कॉर्पोरेशन उन्हनि खे बीयू परमिशन इशू कई आहे घणनि ई बिल्डिंग्स खे। सिमिलर वे में कंहिं बि बिल्डिंग में बीयू परमिशन कान्हे त स्टिल वन कैन अप्लाई, उन्हनि जा जेके नॉर्म्स आहिनि कॉर्पोरेशन जा उहे फुलफिल करे दे कैन ऑब्टेन द बीयू परमिशन। हिन में मां हिकु ऐड कंदुमि कि 2011 में जे पहिरें जा जेतिरा बि हुआ ऐं अनरेगुलराइज़्ड हुआ त उहो इम्पैक्ट फी भरे करे हुननि रेगुलराइज़ कयल हुआ, हुनजो कॉर्पोरेशन मां इम्पैक्ट फी क्लियर कराए करे रेगुलराइज़ कयल हुआ। प्लस बीयू परमिशन जाम बिल्डिंग जी अगरि तव्हां झूने में न वरिती आहे, इम्पैक्ट फी न भरी आहे, त तव्हांजी उहो बिल्डिंग जा ओनर्स जेके मतिलबु जेके हुन टाइम ते जेके उहा जे परमिशन वरिती आहे ऐं वो कंडीशन अगर फुलफिल थियनि थी, कंस्ट्रक्शन इज एज पर द प्लान अप्रूव्ड एट दैट टाइम, अगर आहे त तव्हां बीयू लाइ अप्लाई करे था सघो। अदरवाइज इम्पैक्ट फी जो ऑप्शन 2011 खां पहिरियों हो जेके कंस्ट्रक्शन हुआ, प्लस इट इज़ अ लाइक पॉलिसी आहे, वो थोरे टाइम में ईंदा आहिनि। त एएमसी 2011 में कढियो त इट मे बी फ्यूचर में बि हुन इम्पैक्ट फी जी प्रोसेस करे था सघो, त हुन टाइम ते बीयू जे लाइ इम्पैक्ट फी प्रोसेस करे तव्हां तव्हांजो रेगुलराइज कंस्ट्रक्शन करे था सघो। कुछ पार्टिसिपेंट्स जा हैंड रेस्ड आहिनि त उन्हनि सां क्वेश्चन आहे टाइम त अॻियां भले। ओके, मां उन्हनि खे स्पीक करण जे लाइ परमिशन ॾियां थो त हू पंहिंजो क्वेश्चन पुछनि। वन मिस्टर अरुण चैनानी, हैंड रेज है, यू हैव एनी क्वेश्चन? अनम्यूट करना पड़ेगा उनको, अनम्यूट। हाँ, आई थिंक नहीं है। महेश गोपलानी सर, भाई अनम्यूट है अरुण भाई। हाँ,
अरुण चैनानी सर. नहीं अनम्यूट Okay. अनम्यूट थैंक यू Mahesh Goplani sir, any question? No question. No question. Okay. गैलेक्सी टैब है, कौन है? Dr. Gokul Sadhwani. Hello. Can Yes, you hear sir. me? Yes sir. हाँ, सो मां 93 में पोजीशन वरती हुई सोसाइटी खां ऐं बिल्डर सां डिस्प्यूट जे कारण बिल्डर सोसाइटी वारनि खे शेयर सर्टिफिकेट मुंहिंजे फ्लैट जो न ॾिनो हो ऐं हाणे सोसाइटी वारनि खां मां अगरि शेयर सर्टिफिकेट घुरां थो त उहे चवनि था भई तव्हांखे FIR रजिस्टर कराइणी पवंदी वग़ैरह वग़ैरह. वी कैनॉट इश्यू, तव्हांखे बिल्डर खां ई वठिणो पवंदो. त शेयर सर्टिफिकेट इसेंशियल आहे या उन बिना बि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे सघिजे? 93 में त शेयर सर्टिफिकेट वॉज एसेंशियल. तव्हांखे हाँ. बेसिकली उनजो शेयर सर्टिफिकेट हुजणी खपे त ई तव्हां ट्रांसफर करे सघो था प्रॉपर्टी. मतलब as on you today. can always give an application to the society for issuance of the duplicate share certificate. न, सोसाइटी उन जे लाइ तयारु नथी थिए भई असां डुप्लीकेट न इशू कंदासीं, तव्हांखे बिल्डर खां ई वञी वठिणो आहे. उन केस में छा करे सघिबो? उहो त बिल्डर जे साम्हूं तव्हांखे दावो करणो पवंदो. भई तव्हांखे जे सपोज बिल्डर नथो मञे त तव्हांखे उन जे साम्हूं दावो करे माना शेयर सर्टिफिकेट इशू कराइणो. ओके, माना शेयर सर्टिफिकेट इसेंशियल आहे. बिल्कुलु इशू है. नॉमिनीज कोर्ट में भी कार्रवाई करे कराए सघे. इहा प्रॉपर्टी अगरि मां कंहिंखे गिफ्ट कयां ब्लड रिलेशन में त पोइ शेयर सर्टिफिकेट जी ज़रूरत त खरी? हा, हुन खां पोइ बि उहा ज़रूरत रहंदी. अच्छा. छो त तव्हांजा राइट्स ओनरशिप जा तॾहिं ई एस्टेब्लिश थींदा जॾहिं तव्हांजो शेयर सर्टिफिकेट. न, पर आउट ऑफ 3 जेके तव्हां चया लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऐं पोजीशन लेटर आहे मूं वटि. हा, त इन दैट केस शेयर सर्टिफिकेट ज़रूरी आहे? हा, शेयर सर्टिफिकेट इज मेंबरशिप आहे न. उहो सोसाइटी जी मेंबरशिप तव्हांखे उन बेस ते थी मिले न. थैंक यू. Mohan Devnani sir. Good afternoon, sir. I'm Mohan Devnani from Bombay. I have my हिकु रिक्वेस्ट मूंखे आहे कि असांजे पेरेंट्स जी प्रॉपर्टी जयपुर में आहे ऐं असां विल करायूं पिया. हाणे शायदि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक असां विल कराईंदासूं, पर विल यदि रजिस्टर्ड न करायूं या करायूं ऐं उन खां पोइ अॻियां का डिस्प्यूट मतिलबु डिस्प्यूट जी चांसिस लॻनि पिया, असांखे डिस्प्यूट थी सघे थो, त हाउ शुड वी एंश्योर दैट इट मे नॉट बी डिस्प्यूटेड और after death of my father-in-law, I mean, nobody raises any voice before the court about that. प्रोबेबिलिटी ते तव्हां न वञी सघंदा मिस्टर मोहन. छा आहे, डिस्प्यूट त थींदा ई रहंदा आहिनि विल थियण खां पोइ बि. त तंहिंजे करे तव्हां इहो इंश्योर कयो भई तव्हांजो जेको विल ठहे उहो सभिनीनि जी बेसिकली सभिनीनि जी सहमति सां ठहे. या त तव्हांखे ॿियो ऑप्शन इहो आहे तव्हां उहा प्रॉपर्टी उन्हनि जी हयाती में ई गिफ्ट कराए करे जंहिंखे उन्हनि खे ॾियणी आहे उन जे नाले ट्रांसफर कराए छॾियो त कोई डिस्प्यूट न रहंदो. त गिफ्ट ऐं रजिस्टर में कुझु चार्जिस कुझु लॻंदा, एक्स्ट्रा कुझु चार्जिस या कुझु इशू आहे? हा, गिफ्ट में तव्हांखे स्टैम्प ड्यूटी भरणी पवंदी. जयपुर में राजस्थान में जेका बि जंत्री जे हिसाब सां हुते जो शेड्यूल हूंदो स्टैम्प ड्यूटी उहा तव्हांखे लॻंदी. जेकी रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प जी फॉर्मेलिटी राजस्थान जी हूंदी त उन हिसाब सां तव्हांखे उतां फॉलो करणो पवंदो. गिफ्ट डीड कराइण वधीक बेटर. गिफ्ट डीड में एब्सोल्यूट पावर्स मिली वेंदा, पर विल त आफ्टर डेथ एप्लीकेबल थींदा. उन में डिस्प्यूट या भी चांसेस आहिनि. अच्छा. थैंक यू सो मच. वेलकम. दिलीप भाई. हिकु क्वेश्चन आहे, पेढ़ीनामो ऐं सक्सेशन सर्टिफिकेट ये ॿई ज़रूरी आहिनि कि कोई हिकु बि हुजे त हलंदो आहे? ट्रांसफरिंग टू इयर्स. साईं, हिन जो जवाबु असां ॾेई चुका आहियूं. सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट इशू कंदी. सक्सेशन सर्टिफिकेट जेॾी महिल तव्हां वठण वेंदा कोर्ट में ओॾी महिल हुनजो पेढ़ीनामो जेको गुज़ारे वियो आहे हुनजो पेढ़ीनामो रजू करणो पवंदो आहे. भई हिन जा लीगल हेयर्स ही आहिनि, त उहो तव्हां मां कोई बि हिकु जेको वारसदार उहो एफिडेविट ते ज़ाहिर कंदो आहे भई हीउ पेढ़ीनामो असांजो आहे. अच्छा, त ॿई अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि? हा, ॿई अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि. ओके, थैंक यू. वेलकम. नेवानंद हरपलानी जी. गुड आफ्टरनून. पहिरीं ॻाल्हि त मां तव्हांखे थैंक यू चवंदुसि भई तव्हां ॾाढो सुठो
ये ज्ञान ॾिनो आहे असांखे। हाणे मूंखे हिकु ख़ाली ॻाल्हि जो अञा क्लियर कान थी या तव्हां कान ॿुधाई, भई काई प्रॉपर्टी आहे, तव्हां ॿुधी सघो था न मूंखे? हाँ, You are able to बिल्कुल। hear me? हा, कि काई प्रॉपर्टी आहे, सपोज मां पंहिंजे ऐं पंहिंजे सन जे नाले ते रखी आहे, ऐं विल मां जस्ट ख़ाली हिकु पेपर ते विल रखी आहे जंहिंमें विटनेस पंहिंजे इहे कंहिं दोस्त फ्रेंड या रिलेटिव की रखी आहे, ऐं आफ्टर माई डेथ whether there will be any problem for my son to transfer the property, joint account है, it is joint account, my and my son। कोई डिस्प्यूट न थींदो हुन में, कोई तकलीफ़ न थींदी। अच्छा, ऐं हुनखे रजिस्ट्रेशन करणी पवंदी आहे वरी? न, रजिस्ट्रेशन जी ज़रूरत कोन्हे हिन केस। ओके, and same applies for suppose my wife and my daughter, my उन्हनि जे joint नाले ते कयल आहे, वाइफ जे डेथ खां पोइ ऑटोमेटिक माना इजीली थी वेंदी उन डॉटर जे नाले ते? हा, जे मां खाली विल मां नॉर्मल पेपर वारी रखी आहे, इज इट ओके? छो मूंखे ख़बर कान्हे भई हुन में नोटरी वारे में भई केतिरी कॉम्प्लिकेशन आहिनि, पर नॉर्मल पेपर वारी विल हुजे, इज इट वैलिड? यस, इट इज वैलिड, पर रजिस्टर कराइण ज़रूरी आहे। ॿ विटनेस हुजनि उहो ज़रूरी आहे। अच्छा, कोई पेपर उनमें स्टैम्प लगाइणो आहे या कुछ अहिड़ी ये लगाइणो, ये सिक्को सही सिक्को कुछ लीगली उहो ज़रूर कान्हे, पर फॉर द सेक ऑफ माना सेफ्टी ऐं सिक्योरिटी असां एडवाइस इहा ई कंदा आहियूं भई तव्हां रजिस्टर कराए छॾियो विल। न, छा कोई डिस्प्यूट जो केस कान्हे को, त उन केस में मां सोचां थो भई मां सपोज या नॉर्मल हिकु पेपर वारी रखां, कोई डिस्प्यूट कान थियण वारो आहे न, त पोइ मां चयोमांव न हुन में कोई इशू कान्हे। अच्छा, बस थैंक यू। प्रॉब्लम तॾहिं अची थी सघे। देवानंद जी, हेलो, मां ॿुधाइणु चाहियां पियो तव्हांखे। हा जी सर, मुंहिंजो सवाल ई आहे त सपोज ओनर जी डेथ खां पोइ जेका प्रॉपर्टी ट्रांसफर थिए थी लीगल हेयर ते, त उन में स्टैम्प ड्यूटी ऐं रजिस्ट्रेशन चार्जिस कीअं रहंदा? एक्सपायर थियण खां पोइ कोई चार्जिस कोन लॻे, डायरेक्ट ट्रांसफर थी सघंदी आहे। अच्छा, कोई स्टैम्प ड्यूटी कुझु न हूंदो आहे? न, कुझु बि न हूंदो आहे, लीगल हेयर से नाले थींदी आहे, भई हुन में 7/12 सिटी सर्वे में नालो फेराइणो। जी, शुक्रिया साईं, थैंक यू। गैलेक्सी टैब, जसवंत मदलानी, अनम्यूट करिए जसवंत जी। और लास्ट है मोहन भाई, देन वी विल कंक्लूड। जसवंत मदलानी, मोहन भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी। पेरेंट्स की डेथ हो गई है, कुबेर नगर के अंदर प्रॉपर्टी है, 2 भाई है, एक अनमेरिड सिस्टर है, इसी सर्वे में तीनों का नाम है, तो अभी वो प्रॉपर्टी किसके नाम से होगी? तीनों के नाम पे। ये कुछ प्रोसीजर करनी पड़ेगी क्या? सिटी सर्वे में ट्रांसफर कराना पड़ेगा। सिटी सर्वे में तीनों का नाम है? बस, तो फिर जरूरत नहीं है ना। कोई जरूरत नहीं है ना, दैट इज फाइनल। हाँ, फाइनल। ओके, थैंक यू। मोहन जी। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? जी। अच्छा, मुंहिंजो भाउ आहे, उहो ओचितो उन जो हाणे दिमाग़ी कमु नथो करे। पाण वॾो इंजीनियर हो, पर मेडिकली हाणे बिस्तरे ते आहे। हाणे उनजी प्रॉपर्टी जेकॾहिं असां चाहियूं त स्मूथ ट्रांसफर थिए, त हाणे असां छा था करे सघूं? हुनजो हथ पैर कुझु बि नथो हले। हथ पैर नथो हले, पर हुन ॿियो कोई सम्झी सघे थो कुझु? न, कुझु नथो सम्झी सघे। त वो सिविल मैटर दे, सिविल में ही परमिशन वठे, जंहिंजे नाले ट्रांसफर करणो आहे। न, कुझु ॻाल्हाए बि नथो सघे। परमिशन, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट तव्हां हुन प्रोसेस करे कोर्ट मां तव्हां अप्लाई करे था सघो। ऐं उन केस में हुनखे मेंटली अगरि कोई कमु दिमाग़ कंहिंजो न कंदो त हुनखे लुनेटिक चई करे कोर्ट या त मेडिकल अनफिट चई करे कोर्ट परमिशन ॾींदी आहे कि भाई हिन जी प्रॉपर्टी असांखे कहिड़े पर्पस लाइ विकिणणी आहे ऐं छाजे लाइ विकिणणी आहे, त उहो गार्डियन फॉर द टेम्पररी गार्डियन हुननि जो अपॉइंट थींदा आहिनि। नेक्स्ट किन मानी ब्रदर या फैमिली मेंबर हुनखे अपॉइंट कराए करे तव्हां सिविल मां ऑर्डर, कोर्ट मां ऑर्डर वठी था सघो।
एतिरो हथ में टाइम कोन थो लॻे, इट्स मैटर अ फ्यू डेज फ्यू डेज लाइ त पोइ वेट करे ठीकु आहे न, पोइ सक्सेसफुल सर्टिफिकेट वठिजो साईं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जेको बि आहे वो प्रोसेस इहो आहे ऐं वी आर होपिंग कि वो वधीक जीअनि, पर जेको बि आहे वो प्रोसेस करणो पए। हा इहे त चमत्कार थी सघे थो, ठीक थी बि थी वञे, पर असां चाहियूं पिया त मगज़मारी घटि थिए, स्मूथ थी वञे कमु। हिन जो हिनखे वाइफ आहे, ॿार कोन अथसि। वाइफ विल बी द नेक्स्ट एयर ऑफ हिम एंड वो भविष्य में विकिणी सघंदा, कोई प्रॉब्लम न ईंदी आहे हुन। ठीकु आहे, ठीकु आहे। ॿियो मुंहिंजो हिकिड़ो सुवाल हो तव्हांखे, त उनमें ॿ सुवाल आहिनि। मां हैदराबाद में मकान परचेस कयो, असां अहमदाबाद रहंदा आहियूं। अच्छा, हुते बिल्डर लैंको करे बिल्डर हो, ॾाढो हैरान कई, हाणे लिक्विडेशन में आहे। हा, उहो त लिक्विडेशन में हलियो वियो, पर असांखां हिन 7 लख ॾाढा ज़बरदस्ती वरिता, ऐं मां लीगली चाहियां त मां वसूल करे सघां थो हुनखां, छाकाणि जो हिन पोजीशन तमामु घणी डिले कई। डिले में कॉम्पेसेशन ॾियणो हो हिनखे एग्रीमेंट जे हिसाब सां। कॉम्पेसेशन त कोन ॾिनी, मां मूंखां 3 लख वधीक घुरी, हुनजी रसीद बि ॾिनी अथई। त हाणे जॾहिं हलियो वियो लिक्विडेशन में, त को एक्शन थी सघे थो छा हुन अगेंस्ट? न, प्रॉपर्टी तव्हांखे ॾिनी अथई, पोजीशन ॾिनो अथव? पोजीशन आहे मूं वटि, त सभु रसीदूं पई आहिनि, सभु वाइट पेमेंट आहे, का ब्लैक पेमेंट न आहे। पर हिन ज़ोरी ज़बरदस्ती करे, छाकाणि जो ॾाढो वॾो माण्हू हो। कोई बि कंपनी लिक्विडेशन में वञे थी त हुनजो लिक्विडेटर अपॉइंट थियो हूंदो, तव्हां हुनजे साम्हूं क्लेम रखोसि लिक्विडेटर जे साम्हूं, त तव्हांखे जेको मिलणो हूंदो उहो तो मिलंदो तव्हांखे। अच्छा, ठीकु आहे। ऐं ॿियो हुनजो उहो जेको मकान आहे, मुंहिंजे वाइफ संजय नाले ते आहे, ऐं असां पावर ऑफ अटॉर्नी अहमदाबाद जे ट्रेशरी जेको ऑफिस आहे न, रजिस्ट्रार खां वरितो आहे, त उहो हैदराबाद में वैलिड थींदो छा? जेको मुंहिंजो पावर ऑफ अटॉर्नी मां हिन खां वरितो आहे, मुंहिंजे वाइफ ऐं मुंहिंजे सन ॾिनो आहे मूंखे, त छा उहो हैदराबाद में वैलिड थींदो? पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड आहे? रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद। हा, त वैलिड आहे। वैलिड आहे, उते लॉस जे हिसाब सां, कुझु स्टेट लॉस जे हिसाब सां तव्हांखे उते डॉक्यूमेंट एंटर थियो आहे, तव्हांखे इट इज़ रेडी टू यूज़ इन हैदराबाद, उते तव्हांजी कुझु फॉर्मेलिटीज़ हूंदी आहिनि, हिकु स्टेट खां ॿी स्टेट में डॉक्यूमेंट यूज़ करण लाइ, त उहो फॉर्मेलिटी तव्हांखे उते चेक कराइणी आहे। पर मां ईअं पियो सोचां त जंहिं सूरत में पावर ऑफ अटॉर्नी तॾहिं ॾिबो आहे जॾहिं माण्हू फिजिकली उते प्रेज़ेंट न थी सघे। सम्झो कि लंडन में आहे, हाणे उते लंडन में पावर ऑफ अटॉर्नी करे सघंदो आहे, हुनखे इंडिया में अचण जी ज़रूरत न आहे, त लंडन में कयल पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड थींदो आहे इंडिया में। त मुंहिंजो अहमदाबाद जो पहिरियां पावर ऑफ अटॉर्नी हैदराबाद में वैलिड ई थियणु घुरिजे। हाणे उते वेंदो आहियां त उहो हुन मुंहुं न ॾींदा आहिनि मूंखे। उते हुतां जा रूल्स जेके आहिनि फॉलो करणो पवंदा न। ओके, थैंक यू। We have no questions. Jitendra, please proceed. Thank you very much. First of all, I thank you to our speakers, Shri Deepak Sejwani sir, Shri Narendra Telamin sir, for taking the time out today's session for our society. जहाँ मेरा what is the procedure of transfer of property, registered agreement of sale करनी खपे ना करनी खपे, breach of मानकत, no topic हो, your complaint against the builder in RERA, importance of will, gift deed and will, what is the difference between this? ये सब topic था असांखे इन सेशन में ॿुधाया, जे ॾाढा important हुआ। तो उनला तव्हांखे thank you very much, सिंधी प्रोफेशनल सोसाइटी तरफा तव्हांखे आभार। We also thank you to moderator Shri Dheeraj Sejwani for covering all the debatable issue. Also thanks to webinar committee for arranging this webinar, and also thanks to all participants who take the actively part in this webinar. We hope that this will benefit you, and each one you prepare the will so that there is no dispute relating to property. Thank you. मैं सर भी conclude करूँ आने? हाँ, yes. Thank you, sir. Thank you to all. Very much.